मार्केट गोज लाइक अप लाइक अ स्टेयर्स बट कम्स डाउन लाइक अ लिफ्ट. तो लिफ्ट फास्ट आती है तो शेलिंग भी फास्ट होती है. दो डीमेट अकाउंट बनाइए, एक में स्विंग करें जिसमें नीचे बॉटम बन चुका है, थोड़ी क्वांटिटी बाहर डिप्लॉय करें, और 60% जो फंड्स हैं वो इंट्राडे में करें. अंदर से क्या न्यूज़ बाहर आ रही है, मार्केट उस पर क्या रेट करेगा, नोबडी नोस. तो ऐसे टाइम में वी कैन अवॉइड ट्रेडिंग. आपको ये पता चल जाए कि उसमें से कितने ऊपर जा रहे हैं, अप ट्रेंड कितने डाउन ट्रेंड है, जिसे एडवांसेस डिक्लाइन कहते हैं, क्योंकि हम पीछे भागते ट्रेड को लेते हैं. सबसे पहले बिगिनर को अपनी कंडीशन में ट्रेड लेना है. कि अगर किसी ट्रेडर को देखना है तो आप देखो कि एक टाइगर कैसे शिकार करता है. वो सबसे पहले अपने शिकार को अपने कंफर्ट जोन में आने देता है. करेक्ट. कभी भी पीछे नहीं भागता, पहले अपने कंफर्ट जोन में आने देता है. तो आपको ट्रेड के पीछे नहीं भागना, ट्रेड को आपकी कंडीशन में आने देना है. अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर देना है. नॉट कि एक ही सेक्टर में सारे पैसे लगाएं. थोड़ा डाटा बनने दीजिए. जितना लेट एंटर करेंगे उतना मैच्योर डाटा मिलेगा. तो ये मेरे को कभी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं जो कैरी कर रहा हूँ पोर्टफोलियो वो बॉटम से कर रहा हूँ. वो मेरा उसका लॉन्ग टर्म नजरिया है. बट जो इंटरडे कर रहा हूँ वो मार्केट का व्यू मॉर्निंग में आके चेक करूंगा. Hi everyone, welcome to a very special episode of the LearnCast podcast series that we are doing with TradeWise. The objective of this podcast series is that all the learners in our community and the viewers on YouTube get to learn from expert stock market traders and investors and get to learn their real strategies that they can deploy and make profits from. In our very special episode today, we are going to learn from one of the most loved experts on our platform, Mr. Jagpreet Narula. He is going to explain his entire trading journey, what are the common mistakes that he actually made and how he got up from there. And also a very special trading strategy is going to be discussed, which beginner traders can deploy in the market tomorrow and start earning money. I think you are going to love this podcast, love this episode. I really learned a lot. And by the end of this episode, you will have a specific step-by-step strategy that you can deploy in the market. And this is going to be an amazing session. Thank you so much for coming on the show, Jagpreet sir. I think when we started off this series of podcast and we started inviting all the experts of TradeWise, you were the one who was the most requested by our learners. And I think whenever we do a masterclass with you, whenever we do a webinar with you also, the learners are really, really excited, specifically because the kind of experience that you have. I think 15 years now active in stock trading and the kind of hold that you have over the subject. So nice to have you in the show. I will just set the context for you and for our learners. Mostly our viewers consist of beginner traders who are starting their trading journey, and they would want to understand from you what are the kind of common pitfalls that traders would go through in their journey. I think they would want to learn from your mistakes, the mistakes that you did in the journey, and then how did you get up from there and then kept on building the profitable trading journey. So that's one. And then they would want to understand the kind of systems you use, the strategies that you use to multiply the capital that you have. All right. So let's get started. I think maybe we can deep dive into the journey that you have from the last 15 years being active in the stock market. What pulled you in this market? What motivated you get into the stock market? And also what has been the major learning. So if you can just give a quick summary of the journey. Also before the stock market journey, what were you doing? So वहाँ से start करते हैं. हाँ जी. So basically, professionally, I have worked with automobile industry. Yes. For 18 years. Yeah. And education-wise, I am just MBA finance. Okay. I did my MBA from IMT, and I'm come from Himachal University. So master degree in both. Then with the job, I was doing just mutual funds. Okay. Since 2004. बट वहाँ पर मुझे क्या फील हुआ कि वेयर माई मनी इज गेटिंग इन्वॉल्व आई डोंट नो. मतलब मेरा कैसा मेरा कहाँ लग रहा है. अब बेसिकली लाइक म्यूचुअल फंड कंपनी में क्या कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक के हाई प्राइस पे भी लग सकता है. लाइक रिलायंस 3,000 पे खड़ा है, वहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपका फंड्स ऐड कर दिए. यू नेवर नो. अगर मैं खुद बाय करूंगा तो मैं रिलायंस को टॉप पे बाय नहीं करूँगा, नीचे बाय करूँगा, बॉटम पे. तो वहाँ पर मुझे लगा कि मेरा पैसा कहाँ लग रहा है मुझे नहीं पता लग रहा. बिकॉज दे हैव एक फिक्स परसेंटेज कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, चाहे SIP कराएं एवरी मंथ या वन टाइम पेमेंट दें लमसम अमाउंट. बट देयर आई फील कि वाई शुड आई नॉट
इन्वेस्ट माई सेल्फ कि मेरे को खुद पता होना चाहिए कौन से स्टॉक में रिटर्न आ रहा है और मैं कितना पैसा रिटर्न निकालूंगा वहाँ से. सो देयर आफ्टर आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम 2009. So with the job I was doing swing trading and intraday trading. उस टाइम मुझे लगता था intraday because no prior information, no education, no training. So मुझे लगता था intraday मतलब आज मॉर्निंग में बाय किया और बेच देना है, ये कहना है. अब कितना प्रॉफिट बना कितना नहीं बना कुछ नहीं पता था. You did your MBA. Which year was this? When 2008. 2008 you graduated with an MBA. MBA. Nice. And just after college, which kind of industry did you go to? Automobile. Auto industry. I worked with all the brands like Maruti till Jaguar, Land Rover, BMW, 1819. And last 5 years, the last time of my job, last 5 years I was with Hyundai, Tata Motors and Maruti and worked there for GM sales. Okay. So 2009 you started your mutual fund journey first. 2004. 2004 you started your mutual fund journey while you were in college. Yeah. And once you completed the degree, MBA degree, and you got a job, then you said let's अपने हाथ में चीज़ें लेके देखते हैं और म्यूचुअल फंड पे क्यों डिपेंडेंट होना है, खुद से इन्वेस्ट करते हैं, खुद से ट्रेड करते हैं. एंड यू स्ट्रेट अवे वेंट इनटू ट्रेडिंग और यू स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग फर्स्ट? ट्रेडिंग से स्टार्ट किया. उस टाइम देयर वाज नो मोबाइल ऐप, नो चार्ट. करेक्ट. यू हैव टू कॉल द ब्रोकर, योर आरएम, ये बाय कर लो और ये सेल कर दो. क्या बाय कर रहे हैं क्या सेल कर रहे हैं कुछ नहीं पता. लाइक न्यूज़ है तो ये बाय कर लो, या वो बताता है इसमें लगा दूँ तो आपने लगा दे. बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन देम कि वो क्या कह रहे हैं, उनको क्या सही लग रहा है. बट तब इतना ऐप नहीं था. ये आई थिंक थैंक्स टू द कोविड-19 के बाद से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि नाउ वी हैव अ टेक सेवी, वी आर ऑल टेक सेवी. तो हम मोबाइल पे ही सब कुछ करते हैं. लाइक इट्स एन एडवांटेज, लाइक व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग वी कैन मैनेज अवर पोर्टफोलियो. राइट. We can do the trading also. Earlier there was just call. We have to call the guy. वही buy sell करता था बस. और आपको funds add करने तो बैंक जाके करना. Now we can sitting anywhere we can add the funds. So वहाँ पर को लगा कि यार हमें खुद पैसा इन्वॉल्व करना चाहिए. अपना पैसा खुद ऐड करो. क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लग रहा है किसी को नहीं पता. आप अपना पैसा खुद लगा रहे हो तो आपको पता ही कितना रिटर्न लेंगे और कहाँ तक लेंगे. राइट. एंड यू कैन नॉट ब्लेम टू एनीवन एल्स क्योंकि आप खुद अपना डिसीजन ले रहे हैं. 2008-9 में 2008 we had the crash, right? Yeah. And if I remember, not many people were getting interested into कि चलो स्टॉक मार्केट में अपनी Lehman Brothers crash 2008. करेक्ट. उसके बाद IT सेक्टर पूरा क्रैश हुआ था 2009 में. So luckily I entered in June 2009 after that. तो वो सब क्रैश हो चुका था. ठीक है. बट लाइक सो यूजुअली जो बिगिनर्स अट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं पीक के बाद कि मार्केट बहुत पीक पे चल रहा है, बहुत पैसा बन चुका है, तो वो ग्रीड की वजह से आते हैं. कोई भी क्रैश के इमीडिएट बाद एंटर नहीं करता स्टॉक मार्केट में. डिड यू हैव हिस्ट्री ऑल्सो? फैमिली में भी लोग पहले इन्वेस्ट कर रहे थे स्टॉक मार्केट में, ट्रेड कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे. इज दैट व्हाट यू ब्रदर एंड फादर वाज डूइंग. बट देखिए देयर वन पॉइंट, अगर आप टेक्निकल एडवांस्ड हो, यू नो अबाउट द चार्ट ट्रेडिंग, सो क्रैश इज द बेस्ट टाइम. एक कहावत है, एक द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट व्हेन यू गेट अ ब्लड बाथ, जब चारों खून ही खून हो. बट मेक श्योर ब्लड आपका ना हो किसी और का हो. तो आपका क्रैश के बाद ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट शुरू होती है. अगर 2009-2020 की बात करें, टाटा मोटर्स ट्रेडिंग एट 60, नाउ टू 1200. सो अगर किसी ने 60,000 लगाए, आज घर के बाहर एक 12 लाख की कार खड़ी है उसके. बट वो पेशेंस किसके पास है? आई थिंक बहुत कम लोगों के पास है. सबसे बड़ा पैसा बनाता है कंपनी का प्रमोटर, ओनर, क्योंकि वो अपने शेयर कभी नहीं बेचता. बट जो सबसे बड़ा पैसा जो इन्वेस्टमेंट आया स्टॉक मार्केट में वो 2020 के क्रैश के बाद आया. राइट. बट उस टाइम नॉट एवरीबडी एंटर्ड, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस ही था कि कौन एंटर किया, जो टेक्निकल साउंड थे, जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे थे. तो उनको पता था कि यही बेस्ट टाइम है एंटर करने का. अब बॉटम लग चुका है और ये रेट दोबारा नहीं आएंगे. तो वो एक कहते हैं कि अच्छे भाव हमेशा बुरी खबर में ही आते हैं. यू विल गेट द गुड प्राइस एट बैड न्यूज़. बट जब प्राइस अच्छे होते हैं तो न्यूज़ ऐसी खराब चल रही थी कि आपकी गट फीलिंग कॉन्फिडेंस नहीं आता बाय करने का. करेक्ट. यस. ठीक है. लेट्स गो बैक 2009 अगेन. ठीक है. आपने MBA कंप्लीट की, MBA फाइनेंस, एंड आई एम श्योर वी हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ लर्नर्स हु डू MBA फाइनेंस में स्टॉक मार्केट का हार्डली कुछ कवर होता है. टेक्निकल एनालिसिस का, फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत कम कवर होता है. सो दैट इज नॉट इनफ टू make you money in the stock market, right? That time there was not no subject, but nowadays it's stock market equity is a part of I don't think अभी भी है सर. मतलब कुछ कॉलेजेस में है, कुछ में. ओके, फेयर इनफ. ठीक है. तो आपको कॉलेज की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, नॉलेज नहीं मिली. आपके फादर और ब्रदर एक्टिव थे, कुछ हद तक लिमिटेड वे में एक्टिव थे.
सो हाउ डिड यू स्टार्ट लर्निंग? लाइक आपको नॉलेज कहाँ से मिलनी शुरू हुई? आपकी फैमिली के अंदर से, और यू हैड सम अदर मेंटर? देखिए, पहले तो गैस वर्क था, ये बाय किया सेल किया. ड्यूरिंग द कोविड-19 वी वर ऑन एशियन कंट्री विजिट, मी एंड माई ब्रदर. तो वहाँ पर जो कैश आ रहा है 2020 का, लकली उस टाइम हम इन्वॉल्व नहीं थे इतना मार्केट में, हमारे फंड्स इतने डिप्लॉय नहीं थे. बिकॉज हम जब ब्रोकर को फ़ोन करते थे अपने डीमैट ब्रोकर आरएम को, तो कहता था अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ. तो वो कहता था अभी रुक जाओ. उस वक्त में हम भी वर्किंग थे, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, तो हमने इन्वेस्ट नहीं किया. बट पीपल हु इन्वेस्टेड उनका फंड्स ब्लॉक हो गया. तो हमने उसके प्रॉपरली फुल फ्लैश जो फंड्स मैंने डिप्लॉय किए मार्केट में 2020 कोविड के बाद किए हैं. 23 मार्च आई जब लॉकडाउन लगा था, द नेक्स्ट डे जहाँ बॉटम बन गया, वहाँ से फुल फ्लैश इंटरडे ट्रेडिंग. एंड यू लेफ्ट योर जॉब ऑल्सो? वी एट होम, ओके, और एवरीडे एट होम. तो कुछ था ही नहीं करने को. बट स्टॉक मार्केट इज द ओनली वे जिससे वी नेवर फेल्ट कि यार घर पे बैठे बोर हो रहे, क्योंकि वहाँ पर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गया. राइट. बट डिड यू ऑल्सो गेट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग और फॉर्मल एजुकेशन कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है तो इस सबसे सीखता हूँ? Yeah, I have done lot of courses for training as already. The first mentor, he used to trade in BSc. Okay. And I'm also NSE certified technicalist. So मैंने खुद एग्जाम क्लियर किया, तो मैं NSE certified technicalist हूँ. और उसके बाद I have done lot of price action course, but I have few mentors जो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग जिन्होंने मेरे को देखा कराया. Okay. उससे मेरे को लगा कि यार एक्चुअल में वही है जो आपको लाइव में ट्रेडिंग करा दे. ही इज द रियल मेंटोर. लाइक आई यूज्ड टू लाइक नाउ डू लाइव ट्रेडिंग विद माय ऑल माय स्टूडेंट्स. तो मॉर्निंग अब क्या यू विल फाइंड कई होता है कि खाली एजुकेशन पढ़ाई है, किताबी पढ़ाई है. बट व्हेन यू कम फॉर द लाइव मार्केट एट 9:50 बजे रिंग बजती है, उस टाइम कौन परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, वो मैटर करता है. तो वहाँ पर आपकी लर्निंग काम आती है. करेक्ट. क्योंकि स्ट्रैटेजी से कई ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट होता है हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ व्हेन योर मनी इज एक्चुअली लाइव इन द मार्केट. 80% इज माइंड सेट. आप ट्रेड बैठे हो, मैं ट्रेड में बैठा हूँ, आप प्रॉफिट में, मैं लॉस कर दूंगा. मैं प्रॉफिट में लॉस में बैठा हूँ. तो ये जरूरी नहीं कि अगर सब ट्रेडिंग करें सब प्रॉफिट, क्योंकि 80% माइंड सेट है. करेक्ट. कि आपका माइंड सेट क्या है, और हर मार्केट का अलग माइंड सेट रखना पड़ेगा हमें. राइट. दैट इज ट्रू. आई थिंक इन द couple of podcasts that we have done previously also, I think a lot of our focus was on how do we create that winning traders mindset. Sir, mindset पे हम आएंगे. Let's take a step back. पहले let's discuss the different kind of tradings or type of tradings that people get into. One of course is intraday, second is swing, third can be long term. फिर इसके अंदर भी should you इन्वेस्ट इनटू कैश, या फिर शुड यू गो इनटू ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के अंदर, या फिर कैश में भी ऑप्शंस में भी क्या हम स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू करें, या फिर कमोडिटीज़ में जाएं, या फिर फॉरेक्स में जाएं, या फिर क्रिप्टो में जाएं. तो बहुत सारा एक पूरा कैनवस है फॉर द बिगिनर ट्रेडर टू चूज़. ठीक है, तो इस पे आई वुड वांट योर कमेंट्री. हमने पिछले एपिसोड्स में कवर किया a bit about swing trading, जो कि आई थिंक काफ़ी बिगिनर ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है. इस एपिसोड में हम डिटेल में जाने वाले हैं टुवर्ड्स इंट्राडे ट्रेडिंग. राइट. जो बेनिफिट स्पेसिफिकली बिगिनर ट्रेडर को दिखता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो ये होता है कि कम टाइम में ज़्यादा पैसा मिल जाता है. इफ़ आई टेक अ ट्रेड इन द मॉर्निंग, बाय इवनिंग आई विल हैव सम प्रॉफिट, ठीक है, इन माई अकाउंट, एंड आई कैन कंटिन्यू बिल्डिंग ऑन दैट प्रॉफिट एवरी सिंगल डे. राइट. I believe most of the capital that you have deployed, you also deploy into intraday, and that too into cash. Am I right? Yeah. So how did you choose this direction? Because you can also do swing, you can also do options, you can also do buying, selling, commodities, etc. तो आप इसमें से कैसे चूज करते हो? और एक बिगिनर ट्रेडर को जो आज स्टार्ट कर रहा है लेट्स से, और इस पॉडकास्ट से वो सीखेगा कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी भी है, उसको कैसे चूज करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंट्राडे के क्या हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपका फंड ब्लॉक नहीं हो रहा. लाइक स्विंग ट्रेडिंग में इफ़ यू आर इन्वेस्टेड मनी, अगर वो डाउन चला गया तो आपका फंड ब्लॉक है. एवरीबडी हैज अ लिमिटेड कैश. राइट. सबकी कैपिटल लिमिटेड है, मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी कैपिटल, हर ट्रेडर की कैपिटल है. फंड सबके पास लिमिटेड है. बट इंट्राडे में क्या है कि जो आज अपॉर्चुनिटी मिली है, जो आज चांस दी है मार्केट ने, उस ट्रेंड को फॉलो करके हम पैसा बना सकते हैं इंट्राडे में. फर्स्ट रीज़न. सेकेंड,
हम इंटरडे में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं. लाइक अगर कोई स्टॉक डाउन साइड जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो इंटर इज द ओनली वे जहाँ पर हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं अपने ट्रेड को. करेक्ट. शॉर्ट सेल एक बार समझा दीजिए, क्या होता है शॉर्ट सेल किसी बिगिनर ट्रेडर लाइक के लिए? रिलायंस, एनी स्टॉक, आपको लगा कि फर्स्ट कैंडल मॉर्निंग की एंट्री हुई है, एंटर मार्केट ओपन हुई है, वो वीक कैंडल है, बेरिश कैंडल है, ठीक है, रेड है, और मॉर्निंग का हाई ब्रेक नहीं कर रहा, तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर 10 मिनट्स में समझ में आता है, 5-15 मिनट्स में. अगर ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे जाएगा, दोनों में से जाएगा, या साइडवेज जाएगा. तीन ही होता है, या आप अप ट्रेंड जाएगा स्टॉक आज, या साइडवेज जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा. अब हमें क्या सिखाया गया है? नीचे में बाय करो, ऊपर में सेल करो. Correct. किसी ने नहीं कहा कि ऊपर में सेल करो, नीचे में बाय करो. तो इंटरडे इज द ओनली वे जहाँ पर एक ट्रेडर अपने स्टॉक में शॉर्ट सेल कर सकता है, कि ऊपर में सेल किया और बॉटम में आके रिवर्सल पे बाय कर लिया. करेक्ट. सो मार्केट गोज लाइक अप लाइक अ स्टेयर्स बट कम्स डाउन लाइक अ लिफ्ट. तो लिफ्ट फास्ट आती है तो सेलिंग भी फास्ट होती है. तो सेलिंग फास्ट होएगा तो आपका ट्रेड में पैसा जल्दी बनेगा. एंड क्योंकि इंट्राडे में तो हमें लेवरेज मिलता है. लाइक अगर कोई बिगिनर के नॉलेज के हिसाब से बोलो, लेवरेज मतलब कि आपको ब्रोकर मार्जिन दे रहा है. Yeah. तो कॉस्ट स्टॉक टू स्टॉक होता है, बट 80% मार्जिन मिलता है इंट्राडे में एक स्टॉक के ऊपर. लाइक अगर मेरे रिलायंस बाय करने हैं, स्विंग में 100 स्टॉक्स, आई नीड 3 लाख रुपीज, Right. 3,000 into 100. सेम स्टॉक में आई नीड, आप इसका 1/5 कर लीजिए, 50,000 रुपीज़ Correct. या 60,000 रुपीज़. तो 60,000 रुपीज़ में मैं 100 स्टॉक सेल कर रहा हूँ. चलो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है. कितने पैसे? 15,000. ठीक है, मैं 25 स्टॉक सेल कर रहा हूँ. तो आपको मार्जिन दे रहा है ब्रोकर इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए. स्विंग में आपको जितना अमाउंट, जितनी क्वांटिटी चाहिए इनटू स्टॉक प्राइस, उतना फंड चाहिए तभी मिलेगा. यहाँ पर आपको ब्रोकर सपोर्ट कर रहा है. Yeah. तो इंटरडे में मुझे लगता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्किल्स. क्योंकि मार्जिन मनी तो ब्रोकर भी आपको दे रहा है ट्रेड करने के लिए, बट सबसे पहले क्या? स्टॉक सिलेक्शन. और एक बिगिनर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? स्मॉल कैपिटल से. पहले क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी. 500 से 5,000 बनने में देर नहीं लगती, बट पहले हमारी क्या है? कंसिस्टेंसी आए, लाइक हमारे विनिंग ट्रेड ज़्यादा बने. ठीक है. अब एक मैं कहता हूँ कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो हर कोई नहीं होता एवरी टाइम, बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या होता है? जो मंथ एंड में अगर निकाले तो मेरे विनिंग ट्रेड कितने हैं. अगर विनिंग ट्रेड ज़्यादा है तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है सबसे पहले. तो बिगिनर को सबसे पहले स्टॉक्स में आना है और इंट्राडे करें, क्योंकि फंड सबके पास है. और मैं तो कहता हूँ 2 टाइप के अकाउंट आप बना सकते हो. 2 डीमेट अकाउंट बनाइए. एक में स्विंग करें जिसमें नीचे बॉटम बन चुका है, थोड़ी क्वांटिटी बाहर डिप्लॉय करें, और 60% जो फंड्स हैं वो इंट्राडे में करें, क्योंकि वो आपका पैसा रोटेट कर रहा है और सुबह फिर आपको दोबारा से पैसे दे रहा है. तो इंट्राडे में आपका कैपिटल ब्लॉक नहीं हो रहा. एक ट्रेड एग्जिट किया, इंट्राडे में दूसरा ट्रेड लिया, वो एग्जिट किया, थर्ड ट्रेड किया, और स्विंग में आप एक बार लेके बैठ गए तो आपका ब्लॉक हो गया. और अगर कोई ख़राब खबर आ गई, कोई बैड न्यूज़ आ गई मार्केट में, तो नीचे चला गया तो आपका कैपिटल ब्लॉक है. तो जिसकी कैपिटल लिमिटेड है उनको छोटे उससे इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए. सो इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, बेनिफिट्स हैं क्योंकि आप लिमिटेड कैपिटल के साथ स्टार्ट कर रहे हो, लिमिटेड फंड्स के साथ स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका जल्दी पैसा रोटेट होगा, ब्लॉक नहीं होगा. रोज़ आप प्रॉफिट बना सकते हो उसी कैपिटल पे, बनता चला जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, आपको लेवरेज मिल जाता है. कम कैपिटल है तो आपको मार्केट या ब्रोकर लेवरेज दे देगा, तो आपको उस लेवरेज को यूज़ करके कम पैसों से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो. या बिल्कुल 5x 10x प्रॉफिट्स कमा सकते हो. और तीसरा, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, जो कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी आई फॉरगेट टू टेल, कि मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट मॉर्निंग में क्या होने वाला है. इंट्राडे ट्रेडर को ये लाइक मेरे को कभी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं जो कैरी कर रहा हूँ पोर्टफोलियो वो बॉटम से कर रहा हूँ, वो मेरा उसका लॉन्ग टाइम नजरिया है. बट जो इंट्राडे कर रहा हूँ वो मार्केट का व्यू मॉर्निंग में आके चेक करूँगा. तो मॉर्निंग गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है, साइडवेज खुल रही है, तो मुझे ओवरनाइट रिस्क नहीं है. मतलब रात को उठ के मुझे ग्लोबल मार्केट नहीं देखनी. सो इंट्राडे ट्रेडर का स्लीप पीसफुली एट नाइट, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे को स्विंग ट्रेडिंग में टेंशन होती है. ये है कि फंडामेंटली स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग भी चूज़ कर लिया आपने स्विंग ट्रेडिंग में, और आप एक अप ट्रेंड में भी है, फिर भी अगर ग्लोबल कोई न्यूज़ आ गई तो ओवरनाइट सुबह उठते ही वो स्टॉक फट जाएगा, खराब हो जाएगा. बिल्कुल. आप अगर यहाँ पर बात करें कोटक बैंक का, कोटक बैंक का भी न्यूज़ आया दैट आरबीआई इम्पोज रिस्ट्रिक्शन दैट यू कैन नॉट मेक ऑनलाइन कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड एंड बैंकिंग. तो सेम स्टॉक केम डाउन 250 पॉइंट नेक्स्ट डे. सो अब ट्रेडर जो स्विंग कैरी कर रहा है वो दोबारा 1 मंथ के डाउन पे आ गया, जहाँ से स्टॉक चलना शुरू होता है ओवर अ नाइट. तो एक ये रिस्क है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल कहाँ मार्केट का न्यूज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. मोस्ट प्रेडिक्ट. राइट. फेयर एनफ. बट इसी के साथ 2-3 जो डाउन साइड्स होते हैं इंट्राडे के, वो भी होते हैं.
एक आई थिंक सबसे कॉमन जो डाउन साइड लोग बोलते हैं, बिगिनर ट्रेडर्स ये बोलते हैं कि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में, मुझे पूरा दिन बैठना पड़ेगा चार्ट के सामने, देखते रहना पड़ेगा. इज दैट ट्रू? नहीं, देखिए सबसे बात है, मार्केट पूरा दिन परफॉर्म नहीं करती. कुछ 3 टाइम फ्रेम है जैसे हम करते हैं 9:30 to 10:30. ओके. उसके बाद मार्केट मोस्ट ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि साइडवेज हो जाती है. सो मार्केट ओपन्स एट 9:30. 9:15 पे होती है. 9:15 बट देखिए जितना अब 9:15 वाला क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है. राइट. मार्केट गैप अप खुली हो, सबको दिख रहा है. हाँ. सेलर को भी दिख रहा है. डायरेक्ट टीवी में आके कई बार कहते हैं बाय कर लो, तो स्टॉक बाय करते हैं बिगनर या बिल्कुल जो फ्रेशर होते हैं वो बाय करते हैं, स्टॉक नीचे आता है क्योंकि एक प्रॉफिट ट्रेडर को भी दिख रहा है कि ऊपर टॉप पे जा रहा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग होती है. तो मॉर्निंग के जो 15 मिनट्स होते हैं वहाँ पर बहुत वोलेटाइल होता है मार्केट, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रही होती है. अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुली है, आप हमेशा देखेंगे वो जो गैप अप की जो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड थर्ड कैंडल है, वो रेड कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि गैप अप खुली है. तो जो ओवरनाइट रिस्क लेके गए ट्रेडर्स वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुक करते हैं. राइट. और 9:30 तक क्या है, 15 मिनट के अंदर जो ट्रैफिक है थोड़ा सा क्लियर हो जाता है. फिर हमें अपना वहाँ पर एंटर करना है. सो यू आर एबल टू सेंस द ट्रेंड ऑफ द डे पहले 15-20 मिनट के अंदर, और 9:30 to 10:30 आप कह रहे हैं इज द एप्ट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट. मोमेंटम होता है उस टाइम. हाँ. उसके बाद क्या है, अब मार्केट अगर गैप अप खुली है तो होल्ड डे गैप अप नहीं चलेगा, पीछे से पुश चाहिए. अब वो पुश कौन देगा, वो ग्लोबल मार्केट देगी. तो सेकंड टाइम फ्रेम जो मैं चूज करता हूँ 12:30, क्योंकि यूरोपियन मार्केट खुल जाती है. ओके. इंग्लैंड जर्मनी सारे खुल जाते हैं, तो इनके से FIs DIs जाते हैं, उनकी मार्केट ओपन होती है, FIDs एंटर करते हैं, तो फिर एक मोमेंटम मिलता है 12:30. तो या 9:30 करें आप मॉर्निंग में, 9:30 to 10:30 11, उस तक आप प्रॉफिट में या लॉस में. उसके बाद एग्जिट करना है, क्योंकि अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में है तो मार्केट सेकंड हाफ में अगर रिवर्स कर गई तो आपका प्रॉफिट का ट्रेड भी लॉस्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. Okay. तो इंट्राडे में जो दिख रहा है वही अपना है, बाकी सब अपना है. अगर आपको अभी प्रॉफिट दिख रहा है, यही मोमेंट है, क्योंकि कैंडल्स में सब कुछ चेंज हो जाता है. या तो आप कैरी करें, ट्रेलिंग करें, जो काफ़ी लोग नहीं करते. कई लोग करते हैं लेके बैठ जाते हैं और वहीं पर ही भूल जाते हैं, बट ट्रेल करना नहीं आता. करेक्ट. तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करें तो आपको पीछा करना है प्रॉफिट का, ट्रेलिंग कर, स्टॉप लॉस उसे कहते हैं. आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इसको फॉलो कर रहे हो, आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा ट्रेल करो. ठीक है. उसमें ट्रेलिंग असल में क्या है कि आपका प्रॉफिट जो बना है वो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. या तो ये करो, अगर आप नहीं कर रही तो फिर आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट क्या सेंटिमेंट लेके आ रही है आफ्टरनून में, यूरोपियन मार्केट वो हमें नहीं पता. फिर निफ्टी उसको फॉलो करती है. एंड लास्ट का टाइम फ्रेम जो मैं फॉलो करता हूँ 2:30, जहाँ पर आपको डाउ जोन्स फ्यूचर आ जाते हैं. रात को अमेरिकन मार्केट क्या खुलने वाली है वो 2:30 में 2 PM के बाद हमें पता चल जाता है. तो फिर आपको लास्ट का जो 1 आवर है वो मोमेंटम चेंज होता है मार्केट में 1 आवर में, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है. ओके. सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू कलेक्ट. एक एक करके चलते हैं. तो आपने बोला 9:15 to 9:30 इफ आई हैव टू लेट्स से ड्रॉ टाइमलाइन ऑफ द एंटायर डे. ठीक है. और हम सारे व्यूअर्स को दिखाएंगे भी ये टाइमलाइन. 9:15 to 9:30 देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरनाइट रिस्क, क्योंकि रात को जो न्यूज़ आई होगी या सुबह बहुत जल्दी सुबह कोई न्यूज़ आई होगी, तो वहाँ पे जो बायर्स ऑलरेडी बैठे होंगे वो सेल करना शुरू कर देंगे. दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. तो पहले 15-20 मिनट में तो आपको ट्रेंड समझ आएगा, वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है. राइट. 9:30 to 10:30 आपको कुछ ट्रेंड समझ आ जाएगा. टिल 12:30 आप कह रहे हैं अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट इज एक्टिव. तो वहाँ पे दैट यूरोपियन मार्केट विल इम्पैक्ट एनी स्पेसिफिक स्टॉक या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसमें भी आप कर रहे हैं. फिर उसके बाद 2:30 to 3:30 इज द एक्टिव टाइम. यहाँ इसमें क्या होता है 2:30 to 3:30 में प्रॉफिट बुकिंग होती है. ओके. और BTST जो स्टॉक इंट्राडे में परफॉर्म करता है और जिसमें वॉल्यूम अच्छा होता है वो नेक्स्ट डे का BTST जाता है, बाय टुडे सेल टुमारो. मतलब ट्रेडर उसे लेके जाते हैं टेक होम. तो वहाँ पर आपको BTST के ट्रेड मिलते हैं, या फिर आपको ऑप्शन में ही जो ऑप्शन ट्रेडर है वो पकड़ते हैं, जहाँ पर आपको बड़े लो प्रीमियम में आपको एक ब्लास्ट मिलता है प्रीमियम में, जिससे हीरो जीरो भी आजकल कहा जाता है. हीरो जीरो कि 5 वाला प्रीमियम वेंट टू 40 to 100 जो इन द लास्ट 1 hour. इन द लास्ट 1 hour. एक्चुअली वो ब्लास्ट जो आता है वो आता है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में. जब मार्केट बिल्कुल लास्ट टाइम में होता है तो ईदर साइड एक ब्लास्ट हो सकता है, ईदर साइड, कॉलर साइड, पुट साइड. तो वहाँ पर रिस्क कम हो जाता है और थीटा टिके भी हो जाता है. तो जो एट द मनी प्रीमियम आपका स्ट्राइक प्राइस होता है वो इन द मनी के लेवल पे आ जाता है. ओके. फेयर इनफ. आप सबसे ज़्यादा एक्टिव किस टाइम जोन में होते हैं पूरे दिन में? मॉर्निंग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. 9:30 to 10:30. आई यूज्ड टू लाइव ट्रेड विद माय स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम रहते हैं एक्टिव.
स्पेसिफिकली इफ समवन इज स्टार्टिंग इन कैश ओनली, लेट्स से इंट्राडे कैश, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जोन क्या रहेगा? लेट्स से मुझे स्टार्ट करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है कैश में, हाँ जी। अभी मैं ऑप्शन स्टार्ट नहीं करूंगा, तो मुझे क्या मैं सुबह का 1 घंटा डेडिकेट करूं अगर मैं 9:30 to 10:30 और पूरा दिन बिल्कुल इनएक्टिव रहूं, मेरी जॉब है, ठीक है, मैं उसके बाद बिल्कुल कुछ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, एग्जिट करना होगा तो ट्रेड खुद से एग्जिट हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा एट द डे एंड जी। तो क्या मैं 9:30 to 10:30 1 घंटा टाइम स्पेंड करके रेगुलर हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम ही उसके टाइम पे ही है मॉर्निंग में। देखिए अगर 9:30 साइडवेज है तो 10:30 के बाद मूवमेंट आएगा। बहुत सारे 9:30 मॉर्निंग में 9:15 से मूवमेंट हमारा शुरू हो जाता है जो 10:30 तक। तो फर्स्ट 1 आवर होता है उसमें मोमेंटम रहता है मार्केट में, और उसके बाद से थोड़ा मोमेंटम डल हो जाता है। तो अगर कोई बिगिनर भी हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, सेंटिमेंट देख के, तो वो फर्स्ट 1 आवर में आप ट्रेड लेके अपना ड्यू टू जो आपका एक्टिविटी है आप उसमें कर सकते हैं कंटिन्यू। सर इसी के अराउंड पूरी बिल्ड करते हैं, पूरी अपनी टाइमलाइन बिल्ड करते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं कि 9:30 से पहले मेरा होमवर्क क्या होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से आप मुझे ही सिखा रहे हैं और मुझे कल से सुबह उठ के इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, 9:30 से पहले मुझे क्या 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे मैं प्रिपेयर हो जाऊँ 9:30 एक अच्छा ट्रेड पकड़ने के लिए? सबसे पहले तो हमें ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखने हैं, ठीक है, ठीक है। इसे कह लीजिए टॉप टू डाउन अप्रोच। अपनी मार्केट में आने से पहले हमें देखना है ग्लोबल मार्केट, क्योंकि सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमें 9 AM से पहले तैयारी करनी है। अब उसमें हमें क्या देखना है, एज अ बिगिनर आप डाउ जोन्स की क्लोजिंग देखिए, क्योंकि अमेरिका इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री और उनकी मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड मार्केट के ऊपर। लाइक अभी फेड मीट में रेट कट हुआ है 50 BPS बेसिस पॉइंट। तो नेक्स्ट डे हमने देखा अपने एशियन मार्केट और इंडियन मार्केट में गैप ओपनिंग हुई, राइट। वो क्यों हुई? क्योंकि अमेरिकन मार्केट 600 पॉइंट प्लस हुआ बंद। इट इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर इंडिया, सिग्नल फॉर, ठीक। तो ये एक इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग थी 19th को, क्योंकि फेड का रेट कट हुआ और मार्केट गैप अप खुली, करेक्ट। बट उस पर पैसा किससे आया? जो ग्लोबल रात को ओवरनाइट रिस्क लेके गया, क्योंकि अगर गैप अप खुली है वो सबको दिख रहा है, तो वही वाली बात है, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर लाइक मैं, अगर गैप अप खुला है तो मैं होल्ड करता हूँ, लॉन्ग साइड नहीं, जब तक मेरे को कंटिन्यूशन ऑफ लॉन्ग ना दिखे कि कंटिन्यू चल रहा है, गैप अप के बाद भी सस्टेन हो रहा है। गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग डजंट मैटर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता, उसको सस्टेन करना मैटर करता है, वो होल्ड हो। ओके। तो सबसे पहले एक बिगिनर को देखना है कि वर्ल्ड मार्केट क्या बंद हुई है। तो हम देखते हैं लाइक नैस्डैक में, अमेरिका में जितनी टेक कंपनीज है वो लिस्टेड है नैस्डैक में। यस। आपको नैस्डैक देखना है, निफ्टी आईटी उससे कनेक्टेड है। फिर आपको देखना है डाउ जोन्स की क्लोजिंग। ओके। उसके बाद क्योंकि इंडिया इज एन एशियन कंट्री, हमें देखना है एशियन मार्केट की ओपनिंग। एशियन मार्केट अकाउंटिंग इंडियन टाइम 6:30 इन द मॉर्निंग खुल जाती है, तो ये लॉट ऑफ टाइम। और कौन सी मार्केट देखते हैं आप एशिया में? जो निफ्टी फॉलो करता है वो बेसिकली ट्रैक करता है गिफ्ट सिंगापुर निफ्टी, जिसका नाम अब गिफ्ट निफ्टी कर दिया। ओके। तो 7:30 के आसपास इसकी मार्केट ओपन हो जाती है और कितने पॉइंट गैप अप हुआ है, कितना पॉइंट गैप डाउन हुआ है, उससे पता चल जाता है कि तो लेट्स से 9 बजे से पहले मैंने देख लिया डाउ जोन्स पिछले दिन का जो क्लोज हुआ है वो पॉजिटिव में हुआ है, क्योंकि रात को हमारे रात है उसी क्लोजिंग हुई है, तो हमें सुबह उठ के देखना है क्या क्लोज हुआ है, क्या क्लोज, बिकॉज जब मार्केट अमेरिकन चल रही है तब हम वी आर नॉट एक्टिव, वी आर स्लीपिंग। Sure. हमें सुबह उठ के देखना, दो ऑप्शन है, या तो रात भर डेट के चार्ट देखते रहो या सुबह क्लोजिंग देखो। तो हमेशा कहते हैं क्लोजिंग मैटर करती है। ठीक है, सुबह उठ के मैं देखूंगा कि डाउ जोन्स इज पॉजिटिव, कल पॉजिटिव क्लोज हुआ है, या उसकी डे कैंडल में देख लूंगा तो डे कैंडल इज ग्रीन। आपको ये देखना है कितने पॉइंट गैप प्लस हुआ है, मतलब वो आया था कि 580 पॉइंट प्लस हुआ है, माइनस हुआ है एक दिन के अंदर, पिछले दिन के अंदर, ठीक है, पिछले दिन की वर्किंग क्या हुई है, ठीक है। दैट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन माय निफ्टी, या बिकॉज एशियन मार्केट पे सबसे पहले पड़ेगा इम्पैक्ट। समझ गया। एंड इंडिया इज एन एशियन कंट्री, तो हमारी मार्केट भी एशियन मार्केट में ही आती है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने देख लिया गिफ्ट निफ्टी का भी, तो अगर वो भी पॉजिटिव है, अगर वो गैप अप के साथ स्टार्ट हुआ है, या दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर मी कि निफ्टी गैप अप के साथ खुलेगा, उतने पॉइंट खुलेगा। क्योंकि अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव बंद हुआ है तो उसका इम्पैक्ट पूरे एशियन मार्केट में पड़ेगा। निकाई, जापान हो गया, हांगकॉन्ग हो गई, ताइवान, सारी मार्केट पॉजिटिव दिखेंगी, राइट। फिर हम सबको ट्रैक तो नहीं कर सकते, बट बेसिकली हम सिंगापुर निफ्टी देख सकते हैं, एक्सजेक निफ्टी, कि कितने पॉइंट वो गैप अप खुली है और खुलने के बाद कितने पॉइंट प्लस जा रही है, माइनस जा रही है, उस समय आइडिया मिल जाता है। श्योर, फेयर एनफ, ठीक है। नैस्डैक को देख के मैं निफ्टी आईटी ट्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि मोस्टली नैस्डैक इज टेक कंपनीज, ठीक है। अगर मुझे ये अंदाज़ा लग गया कि निफ्टी गैप अप होने वाला है, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? तो 9:15 का मैं वेट करूँ, 9:30 का वेट करूँ, कब ट्रेड लूँ? गैप अप खुल गया, अब आपको ये भी देखना कि आज इवेंट क्या है।
तो हमें इवेंट्स भी देख सकते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्या इवेंट्स हैं। तो जैसे कुछ इवेंट्स हैं जो एवरी मंथ होते हैं, यूएस फेड की मीटिंग एवरी मंथ होती है, आरबीआई हमारे मॉनेटरी पॉलिसी जो अब अक्टूबर में आने वाला है, शायद हमारे अभी रेट कट की बात की जाए, ये भी नेक्स्ट एवरी मंथ होती है। अगर आप देखेंगे जिस दिन ये इवेंट हुआ, लाइक 8 अगस्त को मैं भी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, तो उस दिन मार्केट वॉज वेरी वोलेटाइल, क्योंकि इवेंट चल रहा है, अंदर से क्या न्यूज़ बाहर आ रही है, मार्केट उस पर क्या रेट करेगा, नोबडी नोस। तो ऐसे टाइम में वी कैन अवॉइड ट्रेडिंग एट 9:15 9:30 वाली, क्योंकि रात को यूएस फेड का रेट कट हुआ, वी हैड अ गैप अप ओपनिंग इन निफ्टी ऑन 19 सितंबर, बट वो कंटिन्यूशन नहीं रही गैप अप, वो 3-4 कैंडल के बाद डाउन आ गई। इसका मतलब क्या है कि 9:15 की ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, थोड़ा डाटा बनने दीजिए, जितना लेट एंटर करेंगे उतना मेच्योर डाटा मिलेगा। अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ स्टॉक्स में ही कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ कैश में करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी भी नहीं करता हूँ, क्या स्टॉक्स में भी इन सब का इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स की बकेट है। अगर निफ्टी 50 डाउन जा रहा है तो हमें देखने को मिलेगा कि डिक्लाइन ज़्यादा है। तो डिक्लाइन ज़्यादा है, इसका मतलब स्टॉक्स आज ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आज बेरी सेंटिमेंट है, आज सेलर स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। तो आपको सबसे पहले ट्रेंड फाइंड आउट करना है, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। तो ट्रेंड हमें फाइंड आउट करना है इंटरनेट में ट्रेड करने से पहले। ट्रेड के लिए हमारे पास 6 आवर्स पड़े हैं, 9:15 to 9:30 तो हम बात करें 3:15 तक 6 आवर्स है हमारे पास। बट अगर हमारे को ये तो पता चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। आप बाय का सोचो, मार्केट डाउन साइड जा रही है तो आप अगेंस्ट द मार्केट जा रहे हो, बट अगर आपको ट्रेंड पता चलेगा तो आप मार्केट को फॉलो करोगे, ओवरटेक नहीं करोगे उसे। ओके, ठीक है। सुबह उठ के अगर मैं आपसे पूछूँ आपकी क्या रूटीन रहती है, मतलब इफ़ यू कैन मे बी गिव मी सम हाइलाइट्स की दिन में सुबह उठ के मैं पहले ये वाले न्यूज़ चैनल चेक करता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई चेक फर्स्ट, देन आई गो टू द निफ्टी चार्ट, देन आई गो टू द स्टॉक्स चार्ट। तो आपका क्या, लाइक व्हाट्स द फ्लो दैट यू फॉलो? देखिए, नेवर फॉलो न्यूज़ नहीं देखता मैं सीधा चार्ट देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, मैं आपको सीधा डाटा रीड करता हूँ। ओके, कि आज डाउ जोन्स का क्लोज क्या हुआ रात को, नैस्डैक क्लोज एंड एशियन मार्केट की ओपनिंग, उसके बाद आज कौन सा इवेंट है। तो वो investing.com पे कोई बिगिनर जाएगा, उनको मिल जाएगा आज इवेंट क्या है, ठीक है। फिर अर्निंग कैलेंडर, मतलब आज किसकी रिजल्ट है। तो लाइक स्टॉक स्पेसिफिक, आज अगर रिलायंस का रिजल्ट है तो इसमें एक मोमेंटम मिलेगा, या ऊपर का नीचे का। जैसे अभी रिजल्ट आया जुलाई में, अब अक्टूबर में आएगा, तो रिजल्ट के बाद सेम डे रिजल्ट आना था सैटरडे को, रिलायंस का रिजल्ट या तो फ्राइडे इवनिंग आएगा या सैटरडे आएगा वीकेंड में, करेक्ट, ठीक है। तो मोस्टली फ्राइडे इवनिंग आता है आफ्टर द मार्केट, बट हमने क्या देखा, आफ्टरनून के बाद उसमें सेलिंग आ गई और रिजल्ट आया डाउन, कुछ लॉस हुआ है, और नेक्स्ट 2 डेज सेलिंग हो रही है। इसका मतलब मुझे एक स्टॉक मिल गया आज के लिए, क्योंकि आज इसका रिजल्ट है, तो इसका मतलब आज इसमें मोमेंटम रह सकता है, या आज रहेगा या नेक्स्ट डे रहेगा। सो आई कैन चूज द स्टॉक थ्रू द डाटा ऑल्सो कि आज किसका रिजल्ट है। तो इवेंट बेस्ड है, आज इवेंट कौन सा है, तो इट्स ऑल्सो इवेंट, जिसका रिजल्ट है ये भी इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग है। ठीक है, ठीक है। बट ज़्यादातर दिन ऐसे होंगे जिसमें कोई इवेंट नहीं होगा, जुलाई टू लेके सितंबर। अब जो इनका रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर नवंबर रहेगा, तो डेली ना के किसी स्टॉक पे तो इवेंट रहेगा, किसी ना किसी स्टॉक का रिजल्ट रहेगा। अगर आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है, इसके बाद निफ्टी बैंक को ड्राइव करेगा वो, अब नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, साइडवेज रहेगा। तो हमारे पास अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है आज और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो निफ्टी बैंक के लिए सेलिब्रेशन है, तो निफ्टी बैंक उसको पॉजिटिव लेगी और मार्केट में मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि दीज स्टॉक्स, रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, दीज आर द लीडर्स, दे हैव मेजर कंपटीशन, दे आर द मेन कंपोनेंट्स, तो ये ड्राइव कर सकते हैं। करेक्ट, ठीक है, समझ गया, ठीक है। मैंने न्यूज़ देख ली, मैंने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी देख ली, ठीक है। उसके बाद यू यूज सम इंडिकेटर्स, इज इट इन योर सेटअप? या अब भी हमारे पास न्यूज़ आ गया। अब देखना है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केट की ओपनिंग क्या होने जा रही है, गैप अप या गैप डाउन, तो वो हम चेक कर सकते हैं 9 AM के बाद जब मर्जी। मार्केट ओपन एट 9:15, अब ट्रेडर कैन चेक, अ बिगिनर कैन चेक एट 9 AM, आफ्टर 9 AM आज गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी। अब इसका एडवांटेज क्या है, जो लास्ट डे BTST लेके गए हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, उनको एडवांटेज मिलेगा। जब मार्केट ओपन होती है तो 2 टाइप के ट्रेडर एंटर करते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। जो पहले पोजीशन में आके गया सबसे पहले वो बुक करेगा BTST वाला अपना प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद फ्रेश एंट्री वाला एंटर करता है हमेशा। तो अगर मार्केट गैप अप खुल रही है और मैं कल लॉन्ग करके गया हूँ तो मेरे लिए सेलिब्रेशन है, मेरे को पहले ही पता चल गया आज मैं प्रॉफिट बुक करने जा रहा हूँ, करेक्ट। क्योंकि अगर निफ्टी में करके गया तो निफ्टी ऊपर खुलेगा गैप अप, तो कॉल लिए लॉन्ग करके गया तो पैसे, स्टॉक में करके गया तो वो भी ऊपर गैप अप खुलेगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि आज जो BTST ट्रेड लास्ट नाइट वाला है उसमें लॉस होने जा रहा है मुझे या प्रॉफिट होने जा रहा है, वो हमें पहले एडवांस पता चल जाता है। फिर स्टॉक्स तो मैंने जैसा कहा कि 6 आवर्स हैं,
अभी और क्या देखना है, आज डायरेक्शन क्या रहेगी, उसमें बिगिनर देख सकते हैं एडवांसेस डिक्लाइन। आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते पीछे जाके, बट आपको ये पता चल जाए कि उसमें से कितने ऊपर जा रहे हैं, अप ट्रेंड कितने डाउन ट्रेंड है, जिसे एडवांसेस डिक्लाइन कहते हैं। उससे आपको पता चलता है मोमेंटम क्या है। ओके, या दोनों बराबर हैं 26, 24, 28, 22 लाइक सेम रेंज में, तो आज मार्केट रहेगी साइडवेज, क्योंकि दोनों एडवांसेस डिक्लाइन बराबर है। फिर क्या करना है, फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव मिलेगा, क्योंकि स्टॉक अपनी जर्नी चलता है। यस, उसमें न्यूज़ है या उसमें मोमेंटम है, तो वो अपनी चलेगा। निफ्टी साइडवेज खड़ा होगा, स्टॉक भागेगा। अगर उसमें आज न्यूज़ है तो उसमें एक ऑप्शन ट्रेडर को भी ऑप्शन करना है तो स्टॉक में ऑप्शन कर सकते हैं, बजाय कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इंडेक्स ऑप्शन करने के, क्योंकि निफ्टी तो साइडवेज है, उसमें मोमेंटम नहीं है, बट स्टॉक की तो अपनी जर्नी होगी। तो हमें वॉल्यूम स्टॉक्स देखने। तो अगर इंटरडे ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज करना है। स्विंग प्लेयर, जैसे हम कहते हैं कि टेस्ट प्लेयर कभी भी IPL नहीं खेलते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी नहीं हुई। सेम ऐसी IPL क्या है, इंडेक्स ऑप्शन, फास्ट मूवमेंट, और इंटरडे वनडे इंटरनेशनल है। तो आपकी अगर इंटरडे ट्रेड करना है तो आपको पहले माइंडसेट अपना इंटरडे वाला बनाना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडर को अपने आप को इंटरडे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फास्ट मूवमेंट चाहिए, फास्ट डिसीजन चाहिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं है। ऑलराइट, तो सर हमने अभी तक ये समझा है कि अगर किसी को इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है एज होमवर्क ऑल्सो। 9:30 सवा 9 बजे मार्केट स्टार्ट होगी, 9:15 मार्केट स्टार्ट होगी, उससे पहले ही हमें कुछ चीज़ें देख के रखनी है। वन इज़ ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, बिल्कुल। US मार्केट में क्लोजिंग कैसे हुई, एशियन मार्केट में ओपनिंग कैसे हुई, और अगर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है जो इम्पैक्ट कर सकती हो मार्केट को या फिर किसी स्पेसिफिक स्टॉक को, तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेप को मैं यूज़ करके कैसे मैं उस स्टॉक तक पहुंचूं जिसमें मुझे आज ट्रेड करना है, और उस पर अपना व्यू पॉइंट कैसे बनाऊं। अगर आप ये पूरी जर्नी एक्सप्लेन कर पाएँ, फिर उस स्टॉक में ट्रेड कैसे करना है उसके बाद समझते हैं उस स्टॉक तक मैं पहले कैसे पहुंचूं, क्योंकि मैं इंट्राडे कैश में करना चाहता हूं, ऑप्शंस में नहीं करना चाहता। इंडिया में 5,000 से ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं, तो वो एक स्पेसिफिक स्टॉक कैसे चूज़ करूं, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट। ओके, तो सबसे पहले हम उसमें जीरो डाउन करेंगे स्टॉक से पहले। जैसे हमने बात की, सबसे पहले हमने ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया, राइट। ठीक है। अब ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड देख लिया, हमारे पास ग्लोबल मार्केट ट्रेंड आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया अपना प्री ओपन मार्केट का डाटा, राइट। आज मार्केट गैप अप खोल रही है या गैप डाउन। ठीक है, ये कैसे चेक करेंगे सर, इफ़ यू कैन ऑल्सो शो मे बी ऑन। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि कैसे देखना है ताकि ये लेट कर सके। सबसे पहले देखिए डाउ जोन्स, अभी मार्केट की ओपनिंग हुई है, तो अब क्लोजिंग मैटर करती है, क्या क्लोजिंग आने वाली है इसकी, तो हम कल मॉर्निंग में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए कल की हम क्लोजिंग देख लेते हैं, कल क्लोज किस पे हुआ था। या अगर हम कल देखेंगे तो येस्टरडे वाज बुलिश क्लोजिंग, येस्टरडे वाज US में बुलिश क्लोजिंग हुई थी, बुलिश क्लोजिंग थी। ठीक है, अब आज की मार्केट की हमें देखनी है क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग मैटर नहीं करती। ठीक है, कई बार होता है कि मार्केट ओपन 600 पॉइंट डाउन, ठीक है, बट ओवरनाइट रिकवरी आ गई, पॉजिटिव बंद हुआ, तो मॉर्निंग में हम देखेंगे क्लोजिंग क्या हुई है। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने देखा, अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो moneycontrol.com इज़ अ फ्री साइट, जहाँ पर आके आप एक्यूरेट डाटा देख सकते हैं। तो आप ग्लोबल मार्केट में आएंगे तो यहाँ पर ये US मार्केट में हमें नैस्डैक देखना, जैसे हमने बात की, टेक कंपनी सारी नैस्डैक में लिस्टेड है जी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं एशियन मार्केट, क्योंकि इंडिया इज अ एशियन कंट्री। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आज की क्लोजिंग है, जापान, निकाई, हांगकॉन्ग, ताइवान। ठीक है, ये इन सब क्या है, आज सबकी ग्रीन क्लोजिंग हुई है, हाँ जी, ठीक है, राइट। इनका क्लोजिंग टाइम भी आ रहा है यहाँ पर, राइट। अब हमें फॉलो करना है गिफ्ट निफ्टी को कल मॉर्निंग में। ठीक है, ओपनिंग के बाद ये क्या लो लगा रहा है, क्या हाई लगा रहा है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो सर एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपने बताया डाउ जोन्स है और गिफ्ट निफ्टी है। तो डाउ जोन्स मान लेते हैं कल पॉजिटिव क्लोज हुआ था, और गिफ्ट निफ्टी आज थोड़ा सा नेगेटिव बेयरिश अभी क्लोजिंग है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो आज हमने 17 पॉइंट माइनस नेगेटिव ओपनिंग देखी है जी। ठीक है, और हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे चार्ट पे देख रहे हैं तो गिफ्ट निफ्टी भी आज नेगेटिव रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा सिंगापुर निफ्टी, तो वो भी ट्रेंड उसका नेगेटिव रहा है, ये भी करेक्ट। ये देखिए इसका चार्ट, ये आज का चार्ट है, तो ये भी एक तरह से ओपनिंग का नेगेटिव रहा है। इसकी ओपनिंग हुई है, वहाँ से खुलते नीचे आ गया, तो इसका ओपनिंग नेगेटिव रहा है, तो उसका फर्क पड़ा अराउंड हमारे यहाँ पर निफ्टी में, यहाँ पर अराउंड 17 पॉइंट नेगेटिव हमने ओपनिंग देखी अपने यहाँ पर प्री ओपन मार्केट में। अब ये डाटा 9 AM के बाद अवेलेबल है
जी 9 बजे के बाद जी 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 एक ट्रेडर चेक कर सकते हैं यहाँ पर एनएससी इंडिया की वेबसाइट एनएससी की साइट पे हम देख सकते हैं 9 बजे से पहले ही देख सकते हैं। ब्रोकर की साइट नहीं, एनएससी, क्योंकि रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक डाटा है और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 AM के बाद हमें डाटा रिवील हो जाता है। ठीक है। एंड व्हाट डज दिस मीन सर? एडवांस डिक्लाइंस और एडवांस डिक्लाइन मींस ये प्री ओपन मार्केट में बता रहा है कि आज 23 एडवांसेस जाएंगे, 20 एडवांस डिक्लाइन जाएंगे और 7 अनचेंज, मतलब साथ में कुछ नहीं है, जो कल थे वही आ जाए। अब ये है प्री ओपन मार्केट का। अब ये डाटा अगर मान लीजिए कल सुबह आता है 100+, करेक्ट 200+, इसका मतलब कल निफ्टी गैप अप खुलेगी, राइट। तो जो आज ओवरनाइट रिस्क लेके गए उनको कल एडवांटेज मिलने वाला है लॉन्ग का, जो अगर उनके फेवर में करेगी मार्केट, बट उनके अगेंस्ट गई मार्केट तो उनको सबसे पहले पता चलेगा आज उनको लॉस होने वाला है अगर निफ्टी के ट्रेड लेके गए या स्पेसिफिक निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेके गए। करेक्ट। तो इससे एक ट्रेडर को जो BTST करके गया, बाय टुडे सेल टुमारो, ओवरनाइट ट्रेड लेके गए, उसको डायरेक्शन मिलेगी उसे करना क्या है 9:15 पे, या वो पहली कैंडल पे ट्रेड काटेगा या उसे कैरी करेगा अगर उसके फेवर में जा रहा है। गॉट इट, ठीक है। अब 9:15 हो जाते हैं, सारी चीज़ 9:15 पे है, मार्केट की ओपनिंग होती है 9:15 पे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। तो ये बता रहा है आज 25 एडवांसेस 25 डिक्लाइन, ये अभी का, ये क्लोजिंग की फिगर अभी। तो जो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं उसमें आज 25 गैप अप में ओपन हुए हैं या फिर क्लोज 25 बुलिश 25 डाउन। ठीक है, समझ गया। एडवांसेस मतलब कितने स्टॉक ऊपर जा रहे हैं ओपनिंग के बाद, कितने नीचे जा रहे हैं डिक्लाइन। ठीक है। अभी क्या दिखा रहा है कि 25 मतलब साइडवेज रही मार्केट। ठीक है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर चार्ट पे भी दिख रहा है कि साइडवेज मार्केट का चार्ट हमें दिख रहा है कि आज मार्केट का चार्ट भी बेसिकली हमने देखा कि अराउंड एक साइडवेज ही था, क्योंकि इसमें क्या ट्रेडर खेलेगा, 900 से लेकर 100 पॉइंट में कोई ट्रेड नहीं ले सकता। अगर निफ्टी 100 पॉइंट चली है या 50 पॉइंट चली है तो इसका मतलब स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, राइट। बट अब यहाँ पर एक ऑप्शन बायर या ऑप्शन ट्रेडर को पता लग गया कि भैया निफ्टी में तो आज ऑप्शन बायर का काम नहीं होना, साइडवेज है। ठीक है, ऑप्शन सेलर कैन ट्रेड, बट ऑप्शन बायर हमेशा मोमेंटम कैरी करता है, कैच करता है। तो एक साइडवेज करने का समझने का तरीका आपने समझाया, एडवांस डिक्लाइन का। अगर 26 24 है, 28 22 है, मतलब पास है, बट अगर 40 10 है, 42 8 है या 35 15 है तो वन साइड जा रहा है। तो इसका मतलब आज मोमेंटम उस साइड ज़्यादा है जिससे एडवांस या डिक्लाइन है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो दूसरा हमने स्टेप देख लिया कि एडवांसेस और डिक्लाइंस कितने हैं, ये पता लग गया मार्केट का ट्रेंड। ठीक है, तो मुझे समझ आ गया कि मान लीजिए आज पता चल गया कि एडवांस 25 डिक्लाइन 25 है तो साइडवेज है। हाँ जी। तो अब इसके बाद मेरे को क्या करना है? अब इंटरडे का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि आप इंटरडे में लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करें। ठीक है, लिक्विड मतलब मोमेंटम। करेक्ट। क्योंकि इंटरडे का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि पहले मोमेंटम चाहिए हमें स्टॉक में। अगर मैं स्टॉक लेके बैठूँ उसके अंदर मोमेंटम नहीं है तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मेरा पैसा भी वेस्ट हो रहा है। तो व्हेन यू से लिक्विड, ज़्यादा वॉल्यूम जिसके अंदर मोमेंटम है। करेक्ट, जिसके अंदर मोमेंटम है। तो अब वो कहाँ मिलेंगे? वो हमें मिलेंगे टॉप गेनर टॉप लूजर। ठीक है, टॉप गेनर मतलब आज के 25 स्टॉक्स ऊपर गए बट सारे ऊपर हम जा रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? किस पे वॉल्यूम है? हमें टॉप 5 गेनर पकड़ना है, जिसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव, जिसमें सबसे ज़्यादा बायर्स है वो हमारे टॉप गेनर्स हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा सेलर हैं वो हमारे टॉप लूजर हैं। अब 25 स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, हम किसको ट्रैक करेंगे? मान लीजिए कल 42 डिक्लाइन है तो हम 42 स्टॉक्स को नहीं देख सकते। करेक्ट, हमें 5 वो स्टॉक्स देखने, 5 स्टॉक्स जिनके अंदर सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। ठीक है, सेलर है। ठीक है, वो हमारे आज के ट्रेड बनेंगे सेलिंग के। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, टाटा स्टील वाज द मोस्ट एक्टिव ऑन दी बायर साइड। सबसे ज्यादा वॉल्यूम 13 करोड़ 74 लाख, सबसे ज्यादा वॉल्यूम। हाँ। तो ये आज निफ्टी 50 के जो 25 स्टॉक्स ऊपर गए हैं एडवांसेस, उनमें से ये 5 टॉप गेनर है आज के। ठीक है, और ये डेटा मुझे 9 सवा 9 बजे भी मिल जाएगा। 9:15 पे डाटा मिलता है। ठीक है, आप अगर 9:20 में ट्रेड एंटर करना चाहते हैं तो 5 मिनट वेट कीजिए, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट इज वेरी वोलेटाइल। करेक्ट, इसको डाटा जितना मैच्योर मिलेगा उतना ही आपको फायदा है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्योंकि आपको हो सकता है 9:30 पे स्टॉक हट जाए, दूसरे आ जाएं जो कंडीशन मैच नहीं कर रहे, कोई जिनका वॉल्यूम ज़्यादा आ गया वो आ जाएंगे फिर। तो व्हाट डू यू एडवाइस, 9:20 9:30 कब? आप 9:30 के बाद ट्रेड लें। जितना मैच्योर बनेगा उतना कैंडल उतना ही मैच्योर डाटा है। जितना लेट लेंगे, देखिए हमारे पास 6 आवर्स हैं, हम सिर्फ 15 मिनट अगर डाटा रीड करने में लग जाएं तो हमें एक एक्यूरेट डाटा मिलेगा। करेक्ट। कहीं ये तो नहीं कि 9:30 हम 9:20 पे एंटर ले रहे हो, नेक्स्ट कैंडल में वो हो गया, क्योंकि फर्स्ट 5 कैंडल पे वी कैन नॉट जज। यस, हमें कम से कम 3 कैंडल देखना है। यस, प्राइस का। तो लेट्स से 9:30 आई डिसाइडेड टाटा स्टील में आज बुलिश मूवमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एनएसई की वेबसाइट पे गेनर्स में वो मोस्ट एक्टिव दिख रहा है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, पहले 15 मिनट में ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो गया और वो ऊपर भी मूव कर रहा है। तो मैंने एक तरीका ये है कि टाटा स्टील मैंने चूज़ कर लिया। दूसरा भी कोई तरीका है कोई स्टॉक चूज़ करने का?
बास्केट, अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक लगता है कि नहीं, कई बार मार्केट गैप अप खुली है या गैप डाउन खुली है और आपका मोमेंटम लाइक यू हैव वेस्ट द टाइम, आप लेट एंटर कर रहे हैं, Okay. तो सेकंड मेथड है आप सेक्टर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेक्टर इज अ बास्केट। यस। अब सेक्टर में क्या चलेगा, पहले लीडर चलेगा। सबसे पहले खासियत है इंटरडे की कि सबसे पहले लीडर परफॉर्म करता है। जब लीडर एग्जॉस्ट हो जाता है तब उसी काउंटर के उसका साथ ही चलेगा उसका काउंटर पार्ट। Very तो हम interesting. यहाँ पर आएंगे एनएससी सेक्टर इंडेक्स परफॉर्मेंस में और हमें चूज करना है सेक्टोरियल इंडाइसिस। ये क्या बताता है आज के उनसे सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है। करेक्ट। अगर मुझे यहाँ पर लेट्स से शॉर्ट सेल का ट्रेड देखना है या मुझे बेरिश बनना है, तो मुझे जैसा आज दिख रहा है आज एफएमसीजी 508 पॉइंट डाउन है, इसका मतलब आज सारे ये सेक्टर सबसे ज़्यादा बेरिश है। करेक्ट। तो हमें अगर लॉन्ग जाना है तो देखना है कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा बुलिश है, तो आज निफ्टी आईटी निफ्टी मेटल ये बुलिश है। राइट। तो मेरे पास एक सेक्टर बास्केट आ गई बायर की और एक बास्केट आ गई बेरिश की, सेलर की। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो एक तो तरीका है, मैंने टॉप मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देख लिए, उससे मैंने उठा लिया गेनर या लूजर उठा लिया। हाँ जी। और एक तरीका है मैंने निफ्टी सेक्टोरल देख लिया। या ठीक है, तो लेट्स से आई शॉर्ट लिस्टेड अ स्टॉक, मे बी आज के लिए आप कोई स्टॉक एक शॉर्ट लिस्ट ठीक कर है, लीजिए। हम यहाँ पर बात करते हैं एफएमसीजी की। ओके। ठीक है, अब एफएमसीजी में नाम आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, Yes. दीज आर द लीडर्स। यस। बट एफएमसीजी में क्या सारे स्टॉक गिरेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको डेप्थ में जाने के लिए टाइप करना पड़ेगा सेक्टोरियल इंडाइसिस और उसी सेक्टर के अंदर डेप्थ में चेक करना पड़ेगा एफएमसीजी इंडेक्स में आके। ओके। इसका क्या एडवांटेज है, अब आपके सामने शॉर्ट लिस्ट होंगे इस सेक्टर में कौन से स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा सेलिंग है, Movement दे रहे हैं, क्योंकि right. सेक्टर डाउन है तो हमें बिरी साइड देखना है। ठीक है। हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा टॉप गेनर टॉप लूजर। तो ये आज का टॉप लूजर कौन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। गॉट इट। ठीक है, Got क्योंकि जैसे मैंने कहा लीडर है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, Yes. नेस्ले इंडिया, डाबर। अब इसमें सारे सेक्टर तो नहीं गिरेंगे, कोई स्टॉक गिरेगा कोई चलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ऊपर चलने वाले स्टॉक है, बट सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या है, डाउन साइड। करेक्ट। ऐसे केस में आप लूजिंग साइड जाइए। अच्छा, तो क्योंकि- मेरे को सेक्टर की मूवमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, नहीं कभी भी। जाना, हाँ। नहीं जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेक्टर में टॉप गेनर के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही, क्योंकि पूरा सेक्टर नीचे डाउन जा रहा है। तो पैसा का बनेगा, अगर सेक्टर बेरिश है तो सेल साइड हमेशा पकड़े गॉट इट। टॉप लूजर को, क्योंकि वो पूरा सेक्टर डाउन है। तो इसका मतलब अगर मेन चार्ट डाउन है तो पेरेंट चार्ट डाउन है, तो फिर बच्चे वाला जो छोटा चार्ट है वो भी गिरेगा। अगर इंडेक्स गिर रहा है तो उसके स्टॉक्स भी नीचे गिरेंगे। अब वो स्टॉक्स गिर रहे हैं, कौन से गिरेंगे, उसके लिए आप डेप्थ में जाके टॉप लूजर को कैच करें। और क्या मैं ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा सकता हूँ? मान लीजिए निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी ऑटो बढ़ रहा है, तो क्या मैं स्पेसिफिकली ऑटो का अगर स्टॉक उठाऊं गेनर, क्या वो मैं पिक कर सकता हूँ क्योंकि निफ्टी गिर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो सेक्टर चल रहा है उसके ऊपर एक न्यूज़ है, वो अपनी सेक्टर और स्टॉक हमेशा अपनी इंडिविजुअल चाल चलते हैं। गॉट इट। क्योंकि निफ्टी 50 में मान लीजिए रिलायंस के बेकार रिजल्ट आए, कोई बैड न्यूज़ है रिलायंस में, तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑटो भी नीचे गिरेगा। अंडरस्टूड। ऑटो के अच्छे नंबर्स आए, जैसे हर फर्स्ट ऑफ द मंथ, एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ ऑटो के नंबर्स रिलीज होते हैं। Right. उसके बाद आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीन में देखते हैं ऑटो में मूवमेंट आती है, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे आए हैं, सेल्स अच्छी हुई हैं ऑटो की, तो वो नंबर फर्स्ट को रिलीज होते हैं। Correct. तो आपको ऐसे ही ऑटो में देखना है, अगर ऑटो ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे आ रही है, तो आपका वो सेक्टर तो परफॉर्म कर रहा है ना, उसमें कोई गुड न्यूज़ है। ठीक है। जैसे अभी आया कि ब्राज़ील में फायर हो गया, तो वहाँ पर शुगर स्टॉक की न्यूज़ आई। राइट। तो बलरामपुर चीनी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा सेक्टर उस दिन अगले दिन परफॉर्म किया यहाँ पर, तो इसका मतलब उस सेक्टर ने पूरा परफॉर्म किया। तो आपके पास अगर बास्केट आपके लाइक यू हैव अ बास्केट, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं बास्केट बनाता हूँ, तो ये देखिए उन्होंने नेक्स्ट डे परफॉर्म किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, और मैं स्टॉक की एनालिसिस पे इस पे बाद में जाते हैं, बट आपने बोला कि हर एक सेक्टर की एक स्पेसिफिक न्यूज़ होती है जो उस सेक्टर को इम्पैक्ट करती है, और वो मुझे उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज एन इंट्राडे ट्रेडर। बिल्कुल अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब न्यूज़ दो टाइप से हैं, या तो इवेंट बेस्ड, राइट। आज रिजल्ट है, वो भी एक इवेंट है। करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए एक बिगिनर को चेक करना हो, आप investing.com फ्री वेबसाइट है, इस पर जाके अर्निंग कैलेंडर मतलब जिसका रिजल्ट है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो ये इस वीक की है, तो ये भी एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि अभी सितंबर एंड है, तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स यहाँ पर जो आपको सारे इंडियन कंपनीज दिखेंगी। करेक्ट। उनके रिजल्ट्स आएंगे सेकंड क्वार्टर के, तो होल अक्टूबर एंड नवंबर यू विल फाइंड ऑल द स्टॉक्स हियर।
करेक्ट, ठीक है। तो एक तो अर्निंग इवेंट हो गया, अर्निंग रिपोर्ट आई तो उसका इवेंट हो गया। और कौन से जैसे आपने स्पेसिफिकली बोला कि ऑटो के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड को डेटा रिलीज होता है, एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ, लास्ट मंथ का डाटा सेल्स डेटा, सेल्स कितनी डेटा वॉल्यूम। बट ये लोगों को पता नहीं होगा। आई थिंक यू आर फ्रॉम द ऑटो इंडस्ट्री, इसलिए आपको इस चीज़ की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। तो बाकी ट्रेडर्स ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो कि ट्रैक कर पाए? मेजर सेक्टर्स का आप बता सकते हैं कौन से इवेंट्स होते हैं जो ट्रैक करने हैं? देखिए, ऑटो के लिए तो इवेंट हो गया फर्स्ट ऑफ द मंथ। और ये डेटा कौन रिलीज करता है? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, ठीक है। वहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी। डाटा का हर मैन्युफैक्चरर अपना डाटा रिवील करता है, तो वो आपको जहाँ पर आप जाएंगे तो सेल्स डाटा, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाटा, लास्ट सेल्स, तो वो आपको यहाँ पर गूगल पर टाइप करेंगे मिल जाएगा पूरा डाटा। वेरी गुड, ठीक है। सेक्टर स्टॉक वाइज, मतलब इस कंपनी का ये सेल्स हुआ है पिछले मंथ का, ठीक है। उसके अलावा और कौन से सेक्टर्स की जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है? न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, लाइक हम बात करें कि कई बार एथनॉल के ऊपर आता है कि गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है, एथनॉल के ऊपर बीच में बड़ा आया था कि शुगर स्टॉक के लिए, तो शुगर स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ आई थी, राइट। तो उसके लिए कि एथनॉल का यूज़ होगा शुगर उसमें, करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, शुगर बनाने के लिए, तो उस वजह से शुगर स्टॉक को एक पम्प मिला, शुगर स्टॉक्स को पम्प मिला। एक आई थिंक आपने बताया था कि जो आरबीआई रेपो रेट्स की रिपोर्ट निकालता है उससे भी इम्पैक्ट होता है बैंकिंग न्यूज़ को, बैंकिंग स्टॉक्स को या बैंकिंग इंडस्ट्री को, दैट इज़ वन। इसके अलावा और भी कोई ऐसी स्पेसिफिक न्यूज़ होती हैं जो कि ट्रेडर्स को देखते रहना चाहिए? हर साल, हर महीने होते हैं 2 इवेंट्स। एक यूएस फेडरल की मीट, जैसे भी हुआ 18 सितंबर को, करेक्ट, रेट कट हुआ, ऊपर गया, ठीक है। एक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हमारे यहाँ के लिए काम करता है, तो ऐसे इवेंट्स में हमें मॉर्निंग का ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट उसको क्या रेट करेगी, नेवर नोस। जैसे अभी हम देखें कि हमने बात की कि 19 सितंबर को निफ्टी ओपन गैप अप, बट क्या हुआ, वो गैप अप हुआ वो सस्टेन नहीं हो पाया, गैप ओपनिंग, तो वो सस्टेन नहीं हो पाई। तो इसका मतलब क्या है कि एज अ ट्रेडर क्या होता है, न्यूज़ पहले कैश हो चुकी है चार्ट पे, करेक्ट, सुबह ही गैप अप खुल चुका है, तो हम लॉन्ग का ट्राई कर रहे हैं, बट मार्केट एग्जॉस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम आई थिंक 10 AM तक थोड़ा वेट करेंगे, फर्स्ट 40 मिनट्स या 30 मिनट्स, तो हमें और डाटा रिव्यू मिलेगी मार्केट पे कैसे रेट कर रही है। सेम ऐसे ही जैसे हमारे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीट शुरू होती है, आरबीआई मॉनेटरी मीट जो 10 AM के आसपास, तो 12:30 तक वो मीट ओवर होती है। अब अंदर से क्या न्यूज़ बाहर आ रही है, क्या मार्केट उस पर रेट कर रही है, नोबडी नोज। तो अगर मैं आपको यहाँ पर डाटा दिखाऊंगा, जो प्रैक्टिकली हम बात करें, जब इन जैसी ऐसी न्यूज़ होती है, जैसे हम 8 अगस्त को वी हैड आरबीआई मीट, यहाँ पर हम बात करें तो ये 8 की आप मार्केट देखेंगे, 8 अगस्त की मार्केट ओपन गैप अप, ठीक है। दिस इज 8 अगस्त मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, फिर ऊपर गई, जैसी मीटिंग खत्म हुई 12:30 बजे नीचे आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, वोलेटाइल बहुत है, क्योंकि अंदर से क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या आरबीआई की मीट चल रही है, मार्केट सस्टेन नहीं हो रही, ऊपर नीचे एंड मीटिंग के बाद बायर को स्ट्रैप किया और नीचे फेंक दिया, अराउंड यहाँ से मार्केट आई 300 पॉइंट डाउन। अब ऐसे केस में आप वेट कीजिए जब तक मीटिंग ओवर ना हो, ओके, क्योंकि उसके बाद का ट्रेंड वन साइड रहेगा फिर। तो इवन स्टॉक्स में भी अगर कोई स्पेसिफिक अगर निफ्टी गिरेगा तो फिर स्टॉक्स पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो एक तो मैं न्यूज़ का ध्यान रखूंगा, और हमने ये देख लिया, कोई एक स्टॉक पिक कर लिया अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। पहले मैंने निफ्टी देखा, फिर निफ्टी सेक्टोरल पकड़ा, टॉप मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स पकड़ लिए, एंड वी रीच्ड, लेट्स से वी पिक्ड अप अ स्टॉक कॉल्ड HUL तक हम पहुंच गए। अब 9:30 हो चुके हैं, मेरे पास HUL है, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? अब हमारे पास स्टॉक आ चुका है, अब हम इससे चार्ट पे लगाएंगे, क्योंकि स्टॉक पिक कर लिया, बट बिहेवियर का हम देखने को मिलेगा चार्ट पे। ठीक है, क्या ये लूजर है, क्या हमें चार्ट पे दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, लॉट ऑफ टाइम वी हैव विटनेस की गैप डाउन खुला, हमें टॉप लूजर दिख गया, बट उसके अंदर रिवर्सल आ रहा है। तो अगर चार्ट रिवर्सल बोल रहा है, हमें उसको बिलीव करना है। ठीक है कि चार्ट पे क्या रिएक्शन आ रहा है। तो क्या ये पहले 15 मिनट में पता चल जाएगा? पता चल जाता है। अगर आप 9:30 पे आए हो, वो गैप डाउन खुला है, वो आज का टॉप लूजर है, गैप डाउन खुला है, बट आप चार्ट पे आए हो, वो 9:30 का ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, मतलब रिवर्सल ले रहा है, इसका मतलब उसका काम हो चुका है। फिर हमें वही डायरेक्शन पकड़नी है, उसी स्टॉक पे बायर बनना है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं सर एक बार। हाँ, जैसे आज हमारा टॉप लूजर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट। अगर मैं यहाँ पर आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो इसकी फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे लिए ये फर्स्ट कैंडल है, इसका क्या मतलब है कि ये मॉर्निंग का हाई, अब ये रेड कैंडल क्यों बनी है, अभी बिगिनर को बताना चाहूँगा। अगर ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे आ रहा है तो ये रेड बनता है, राइट। मतलब ओपनिंग ऊपर होती है,
और प्राइस नीचे आ रहा है तो रेड बनता है। करेक्ट। सो 3020 पे ओपनिंग हुई हाँ थी जी, और वहीं से नीचे आ गया। राइट। अब मेरे पास क्या पॉइंट है कि इस पे लॉन्ग तब तक नहीं जाना जब तक ये मॉर्निंग का ये वाला हाई ना तोड़े, क्योंकि ये आज का ही हाई है अभी के लिए। ओके ओके। अब या तो मैं लॉन्ग जाऊंगा या शॉर्ट जाऊंगा। करेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, 15 मिनट वेट करूंगा। अगर मैं 930 वाला ट्रेडर हूँ तो 20, 925 और 930। So this is on a 5-minute chart. Each candle represents 5 minutes terminal. Because we are checking 5 minute time Yes, frame. yes. अगर 3 मिनट की होगी तो ऐसी you can say 10 candles. And like what is your suggestion? Should we trade on 5 minutes? 5 minutes. We should stick with 5 minutes. 5 minutes. Because Great. 5 minute chart will give you early entry, early exit signal also. ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार्ट पे ये मॉर्निंग का हाई बना और ये ब्रेक नहीं हो रहा जी। इसका मतलब मैं लॉन्ग तो नहीं जाऊंगा। 9:30 तक 3 कैंडल हो चुके हैं, ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ जी। और ओवरऑल सेंटिमेंट भी नेगेटिव ही था, मतलब शॉर्ट था, आज का बेरिश negative था, है। बेरिश ठीक था है? जी। अब मैंने यहाँ पर लॉन्ग लगाया, लॉन्ग तो जाना नहीं है क्योंकि ये हाई नहीं ब्रेक कर रहा। करेक्ट। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा हम लॉन्ग का नहीं प्लान करेंगे। बट अब मुझे क्या देख रहा है कि जो 3 कैंडल बनी है इसके बाद इसके नीचे का लो ब्रेक होने जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि सेक्टर भी वीक है और स्टॉक आज का टॉप लूजर है। तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि ये अपने आज का लो ब्रेक कर रहा है। अगर आज का लो ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब हमें डाउन का प्लान करना है। करेक्ट। बट इसने लो ब्रेक किया 5 कैंडल्स के बाद। हाँ जी। तो मैं 5वें कैंडल पे एंट्री करूंगा। बिल्कुल। ओके, ठीक है। आप 5वें कैंडल पे एंट्री करेंगे और अपना ट्रेड लेंगे स्मॉल क्वांटिटी से। अब कई बार क्या होता है कि लाइक आई डू आई ऑलवेज टेस्ट द वाटर, तो मैं मुझे छोटी क्वांटिटी पहले लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। द मोमेंट इट गिव मी कॉन्फिडेंस की कंटिन्यूशन नीचे कर रहा है और नीचे गिरना शुरू हो रहा है तो मैं क्वांटिटी और बढ़ा लेता हूँ उसी में। लाइक आई डू एवरेज ऑन द विनिंग साइड। ओके। लाइक अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं एवरेज करता हूँ ऊपर जाते हुए मैं। ओके। बट स्टार्टिंग में आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजी है, कोई भी स्टॉक एक बार में नीचे नहीं जाता और कोई भी स्टॉक एक बार में ऊपर नहीं जाता। राइट। अगर ये नीचे जा रहा है तो बीच में पुल बैक लेके जा रहा है। करेक्ट। बट अगर ये पुल बैक लेके मॉर्निंग का लो ब्रेक कर रहा है तो इसकी इंटेंशन नीचे जाने की है। तो हम पुल बैक के बाद जब लो ब्रेक करने के बाद एंट्री अपनी क्वांटिटी बैलेंस ऐड करेंगे। ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी। थोड़ी क्वांटिटी पहले टेस्ट करें। आपकी क्वांटिटी ही पोजीशन साइजिंग आपका फियर क्रिएट करता है। ठीक है। छोटी क्वांटिटी में फियर भी छोटा होता है। ठीक है। और इसी वजह से बिगिनर बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हैं। आप कई बार देखते हैं आपने स्टॉक में एंट्री की, स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आया, आपको लगा मेरे अगेंस्ट जा रहा, आपने एग्जिट कर दिया, बाद में वो मॉर्निंग का हाई ब्रेक करके ब्रेकआउट देके ऊपर भाग जाता है। फिर हम दोबारा एंट्री नहीं लेनी पाते क्योंकि हमारी क्वांटिटी साइज बड़ी है। अगर मेरी क्वांटिटी छोटी है और वो पुल बैक के बाद लो तोड़ रहा है तो फिर मेरे को और कॉन्फिडेंस आ रहा है। सो लेट्स से आप मुझे अगर थोड़ा गाइड करें। सो लेट्स से मेरे पास 10,000 रुपये है ट्रेडिंग करने के लिए। तो और मुझे अभी कोई इंडिकेटर्स वगैरह, आई नो आप समझाएंगे कि इस ट्रेड में कंफर्मेशन कैसे मिले हमें कि नीचे जाएगा, तो उस पर हम आते हैं। बट अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आज बेयरिश होने वाला है। पहले 3 कैंडल्स देखे, उसमें समझ आ गया कि बेयरिश ही है। हम बुलिश ट्रेड तो नहीं लेंगे, लॉन्ग ट्रेड तो नहीं लेंगे, तो उसमें मैं शॉर्ट सेलिंग ही करूँगा। मेरे पास 10,000 रुपये कैपिटल है। कंफर्मेशन जब तक मुझे ना मिले मैं कितने कैपिटल के साथ स्टार्ट करूं इस ट्रेड में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी एडवांटेज हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट सेलिंग हमेशा इंटरडे में होती है। यस। और इसमें लेवरेज मिलती है। लेवरेज मिल जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 10,000 है तो मैं यहाँ पर इंटरडे में से शॉर्ट सेल कर रहा हूँ तो मेरे से खाली 12,000 मांग के 10 क्वांटिटी दे रहा है। ठीक है। अब 2 चीज़ों से आप पैसा बना सकते हो, या तो क्वांटिटी बढ़ा के या रेंज बड़ी पकड़ के। बिल्कुल। अगर मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो मेरा फेयर भी ज़्यादा है एज अ बिगिनर। करेक्ट। ठीक है। और अगर मेरी क्वांटिटी छोटी है तो मेरा फेयर भी कम है एज अ बिगिनर। तो मैं छोटी ट्रेड लेके पूरी चाल चल सकता हूँ जी, क्योंकि मेरी क्वांटिटी स्मॉल साइज से है जी। अगर मैं यहाँ से आज का देखूँ कितना मूवमेंट दिया तो मैंने अभी 10,000 रुपीज़ लगाए हैं, 12,000 रुपीज़। और मैं इसके नीचे रियलिस्टिक बात करूँ, इसके नीचे का शॉर्ट पूरा पकड़ूँ तो इससे मुझे 54 पॉइंट मूव दिया है। मतलब आई हैड मेड 540 रुपीज़। 540 रुपीज़ आप 5% कह लीजिए प्रॉफिट। 5% का प्रॉफिट आपको एकदम मिल गया। ओवरऑल इससे कितना मूव दिया है? 2% का। 2% का। वो भी हम वेट करके, अगर स्कैल्पर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो ही कैन मेक मोर मनी। बट हम बिगिनर की यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रॉपर सेटअप के बाद कंफर्मेशन का ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें 1.82% का मूवमेंट मिला। समझ गया एंड तक। समझ गया। ठीक है। उसके बीच में कहीं पर भी इसने मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग एक बार यहाँ पर आने की कोशिश की तो अगर मैं यहाँ भी करूँगा, अगर मैं यहाँ पर काटूंगा तो मैं यहाँ काट सकता हूँ क्योंकि ऊपर आ रहा है। लेट्स से मेरा सेटअप कह रहा है तो भी 1.10%, 1.10%, 32 पॉइंट्स का। अगर मान लीजिए थोड़ी सी क्वांटिटी हो ज़्यादा है तो आई कुड मेक 600 रुपीज़। ठीक है।
कितना लगा के 1,24,000 लगा के अराउंड, तो एक छोटी क्वांटिटी में भी आप ट्रेड लेके पैसा बना सकते हो। करेक्ट, अंडरस्टूड, ठीक है। और एडवांटेज क्या है कि लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप में मूवमेंट ज़्यादा आएगी, मूवमेंट ज़्यादा आएगी तो कम क्वांटिटी में पैसा बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। सो लेट्स से मैंने 10,000 रुपये मेरे पास पूरे ट्रेडिंग कैपिटल था। मैंने एक आई थिंक लेवरेज कितने का मिल रहा था सर इसमें? कितने का मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ अगर मैं एक ही क्वांटिटी खरीदता हूँ? अगर मैं 10 क्वांटिटी शॉर्ट करूँ लेट्स से, क्योंकि इंट्राडे में होती है तो इट रिक्वायर्स अराउंड, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी की बात करें तो 12,000 रुपीज़। या सॉरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर 5,000 रुपीज़, तो वो 10,000 आपके पास है, यू कैन सेल 20 क्वांटिटी शॉर्ट। ये मैं टोटल सेल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 10,000 ही हाँ जी। है। तो जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता, लेट्स से मैं 5 क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करता हूँ। 5 से आप कर सकते हैं। तो पहले 5 क्वांटिटी के साथ मैं स्टार्ट किया। 5 क्वांटिटी आपने शॉर्ट की तो आप उसमें, तो मैंने 3,000 रुपये पहले लगा दिए या। और मैंने सोचा कि जब मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा तब मैं 7,000 और लगा दूंगा, तब मैं 15 क्वांटिटी और खरीदूंगा। कॉन्फिडेंस दे रहा है, हाँ। अब आपको काम करके दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं 5वें कैंडल में हूँ, अभी नीचे आ गया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी चार्ट में कंफर्मेशन के लिए और 2-3 आई थिंक इंडिकेटर्स हैं। ये कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे कि जस्ट टू बी श्योर कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आज बेयरिश ही रहेगा, इसमें सेलिंग ही करनी, नीचे ही जाएगा, तो और कैसे कॉन्फिडेंस बढ़े मेरा? देखिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है। अब वाई इंडिकेटर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको बताता है व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट। राइट। ठीक है, जहाँ पर मैंने यूज़ किया है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसका पीरियड रखा है 5 और 21। ओके। ठीक है, अगर प्राइस इन दोनों के नीचे है तो ये नेगेटिव क्रॉस ओवर है, इसे डेथ क्रॉस ओवर कहते हैं, इट्स अ बेरिश साइन। तो यहाँ पर मुझे क्रॉस ओवर सुबह ही मिल गया क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का साइन आ गया। सर एक बार ये लगा के दिखा देते हैं बिगिनर्स को। ठीक है, तो आप यहाँ पर गए, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जस्ट अ मिनट। चार्ट पे आप EMA पे जाएंगे, यहाँ पर इंडिकेटर पे यू हैव टू टाइप EMA। ओके। ठीक है, EMA क्रॉस क्यों? क्योंकि आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे तो 1 बाय 1 यू हैव टू चूज 2। राइट। फिर आपको इसमें क्रॉस नहीं मिलेगा, मुझे इसमें क्रॉस हो जाए तो मैं क्रॉस वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्रॉस वाला सेलेक्ट किया। अब इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आएगी वो आएगी 9 and 26। ओके। सो आई हैव टू चेंज द सेटिंग। मैं यहाँ पर आके सेटिंग क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आके सेटिंग चेंज कर रहा हूँ 5 and 21। ओके, ठीक है, ठीक है। 5 मतलब शॉर्ट पीरियड, 21 मतलब लॉन्ग पीरियड। सो EMA इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। Moving average। ये अलग अलग हम लगाएंगे तो 2 लाइंस हमें आती हैं। यहाँ पे हमने EMA क्रॉस कर लिया, क्रॉस लगाया, विच इज बेसिकली एन इंटरसेक्शन ऑफ EMA 5 एंड EMA 21। द मोमेंट दे बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यू विल फाइंड अ क्रॉस साइन हियर while going up and while going down। तो यहाँ पर जैसे क्रॉस ओवर हुआ 23rd को, तो ये ऊपर जा रहा है। समझ गया। तो ये बुलिश साइन है। अगर प्राइस इन दोनों के ऊपर है तो बुलिश साइन है। अब यहाँ पर प्राइस इन दोनों के नीचे है तो यहाँ से हमारा सेटअप बोल रहा है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है इसमें। ठीक है, ठीक है। साथ में हम लगा सकते हैं RSI जो हमने नीचे लगाया हुआ है, Correct। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। आपके ट्रेड में, आपके उसमें ट्रेंड में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए RSI बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर जो यूज़ से कोई सेटिंग चेंज नहीं की। 50 के नीचे, 50 इज़ अ मिडल पॉइंट, तो अगर 50 के नीचे जा रहा है तो ये वीक साइन है। ओके। और अगर 50 के ऊपर जा रहा है तो आप देख रहे हैं प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो मेरे ट्रेड में स्ट्रेंथ है कि नहीं है वो RSI बताता है। अब ये ऑस्किलेटर है। ठीक, अब कई लोग कहते हैं कि वाई इंडिकेटर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंडिकेटर यू गिव यू द सिग्नल। करेक्ट। सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल से बेसिक बनाए करूँ कि इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार यू हैव टू गो लेफ्ट, तो आप लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं तो आपके आगे और आपके पीछे वाले को पता है कि आप लेफ्ट जाओगे। करेक्ट। आप राइट का इंडिकेटर देते हो तो आपके सामने और आपके बैक पीछे वाले को पता है कि आप राइट जाओगे। Yes। तो वैसे ही स्टॉक में इंडिकेशन जो होता है, चार्ट पे इंडिकेशन जो होता है, तो हमने इंडिकेटर लगाए हैं यहाँ पर। तो लेट्स से 5th कैंडल पे मैं अभी खड़ा हूँ। हाँ जी। और 5th कैंडल पे मैंने 2 चीज़ें देखनी है। एक तो EMA क्रॉस देखना है, वो क्या देखूंगा अभी? प्राइस क्या है 5th कैंडल पे? हाँ जी, प्राइस है 5th कैंडल पे 3000। और ये EMA की लाइन के नीचे है। या EMA कैंडल का सुबह ही पहली कैंडल पे क्रॉस ओवर हो गया, डेथ क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस हो गया। ठीक है, सिग्नल मिल गया। ठीक है। तो वो पूरा दिन अब नेगेटिव बेयरिश ही रहेगा। Yeah। और मैं RSI देखूंगा 5th कैंडल का, जब मैं एंट्री करने की सोच रहा हूँ वो नेगेटिव आ चुका है। नेगेटिव एज इन बिलो 50, लेस देन 50 आ चुका है। लेस देन 50 मीन्स बेयरिश। या तो मेरी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, Yeah। 2 इंडिकेटर सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, अब मैं एंट्री ले लूंगा। हाँ जी। ठीक है। इज देयर एनी अदर इंडिकेटर ऑल्सो? एक मैं और लाइन देख पा रहा हूँ, मे बी उसके बारे में आप बाद में बता दीजिएगा, बट येस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि व्हेन टू एंटर, एंट्री तो मिल गई, बट व्हेन टू एग्जिट, राइट। ट्रेल कब तक करना है? तो जब तक प्राइस इन दोनों के डाउन साइड है, ये हमारे फेवर में जा रहा है,
ट्रेड। अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया, EMA की लाइन के ऊपर क्रॉस ऊपर आ गया, तो क्लोज हो गया। बुलिश साइन दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक ये पहले ही क्लोज हो गया ना। पहले क्लोज हुआ, ऊपर गया, बट क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्केट कभी भी एक बार में ऊपर नहीं जाती, एक बार में नीचे नहीं आती, तो यहाँ पर ये ट्रैपिंग होती है। अब ट्रैपिंग कैसे होती है, यहाँ पर एक बायर को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, करेक्ट, तो यहाँ पर नया बायर एंटर कर रहा है, ठीक है, बट ट्रैपिंग होती है क्योंकि अगर डाउन साइड है, सुबह से नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में बायर भी एंटर करेगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। तो आपका ट्रेड अगर यहाँ पर आपने एंटर किया है तो आप यहाँ पर भी अगर एग्जिट करते हैं प्रैक्टिकल, जिसके बीच में इससे पहले कहीं नहीं हुआ क्रॉस ओवर, तो भी हमने 32 पॉइंट यहाँ पर गेन किए। करेक्ट, ठीक है। और 32 पॉइंट हमने गेन किए, वैसे ओवरऑल 55 पॉइंट हमें मिले इसमें। ठीक है। इस ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस क्या रखता और एग्जिट सिनारियोज मेरे क्या क्या हो सकते थे? EMA 21 हमारा स्टॉप लॉस है इसमें। EMA 21, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस बड़े वाले EMA के ऊपर जा रहा है तो बुलिश साइन दे रहा है हमें। ये तब तक हम कैरी करेंगे जब तक इनके नीचे प्राइस चल रहा है। अगर 521 के ऊपर हो गया तो हमें एग्जिट करना है, क्योंकि देखिए आपका प्रॉफिट ट्रेड और कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है। यहाँ से रिवर्सल भी सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, बट ये फर्स्ट सिनेरियो में हमें 32 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, और जहाँ हमने सेटअप पे एंट्री लिए तो ठीक है, एज अ बिगनर। ठीक है। इसमें मेरा एक और क्वेश्चन था, आपने पहले बोला था कि मैं पहले स्मॉल क्वांटिटी टेस्टिंग कर लूंगा और फिर ज़्यादा क्वांटिटी डाल दूंगा, वो कब डालता मैं? यहाँ पर जब यहाँ से पुल बैक लेके फिर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि फिर से लो टूट रहा है। ओके, तो एक लो बना चुका है, एक यहाँ पर एंट्री करी, एक यहाँ एंट्री करी, बैलेंस यहाँ पर ऐड कर दी, क्योंकि दोबारा से फिर लो ब्रेक कर रहा है। ठीक है। तो लो जैसे ही उसने दूसरा लो बनाया और दूसरे लो को ब्रेक भी कर लिया, फिर मैं जो रिमेनिंग 7000 है उसमें मैं क्वांटिटी परचेज कर ली। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर तो गया है बट EMA के ऊपर नहीं आया। तो यहाँ पर क्या है कि बायर्स को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि बायर्स आ रहे हैं, कोई बायर करे, बट यहाँ पर मोमेंटम नीचे का ही चल रहा है। समझ गया। ठीक है, तो ये तो सर हमने एक एग्जांपल लिया शॉर्ट सेलिंग का। कैन वी टेक अ वेरी सिमिलर एग्जांपल मे बी इन जहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बन रहा हो, मे बी आज का ट्रेड देख लेते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जस्ट मिनट। आज का ट्रेड हम बात करते हैं एस्ट्रल। ओके, ठीक, ये देखिए आज 24 थी, पहले कैंडल बनी, ये 915 कैंडल है, ठीक है। वही वाला बात करते हैं एज अ बिगनर साइकोलॉजी। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लिया, हाँ, ठीक है, तो ये तीसरी कैंडल में ये ब्रेक हो गया, हाँ, 15, 20, 25, हाँ। मेरे पास 3 कैंडल का पॉइंट आ गया। अभी मैं इंडिकेटर फॉलो नहीं कर रहा, मैं प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 920 वाला बायर हूँ तो भी मैं यहाँ एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर हाई चाहिए। करेक्ट। तो मैं ऑर्डर क्या लगाऊंगा, कंडीशन ऑर्डर लगा के छोड़ सकता हूँ इसके ऊपर का, ठीक है। तो लेट्स से 930 में ही 930 पे हमें यहाँ पर पूरा क्लीन सिंबल मिल गया, मॉर्निंग का हाई ब्रेक हो गया Correct. और इसका हाई भी ब्रेक हो गया। हम यहाँ पर अपनी एंट्री लेंगे अराउंड 1990 के ऊपर। अंडरस्टूड। अब क्रॉस ओवर नीचे हो चुका है, यस, ठीक है, इसका मतलब मॉर्निंग में साइन दे दिया आज बुलिश हूँ, आज बुलिश है, राइट, उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। डबल सिग्नल आ गया, RSI 50 से ऊपर निकल रही है, थर्ड कंफर्मेशन, ठीक है। प्राइस भी ब्रेक हुआ, यस, EMA के ऊपर भी आ गया और नीचे RSI भी बुलिश है, तो Very 3 good. सिग्नल आ गए। यस, तो अभी क्या है ना, बिगनर में पहली ग्रीन कैंडल हरे को बुलिश दिखती है और पहली रेड कैंडल हरे को लगता है हर रेड कैंडल सेलिंग है, राइट, हर ग्रीन कैंडल बाइंग है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो हमें सेटअप देखना है, ओके, ठीक है, अगर कंडीशन मैच करी तो ट्रेड करना है, ठीक है। बेशक लेट एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन मैच करी, ऑल 3 कंडीशन मैच, उसका हम अपना एंट्री ले रहे हैं। सेम कहाँ तक ट्रेड किया, अगर मैं यहाँ से 990 से एज अ बिगनर प्रैक्टिकली बात करूँ कि हमें कितना टर्न मिला जिसके बाद हमने ट्रेड किया, तो मैं यहाँ से एंट्री करूँ, आई गॉट 1.5%, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्राइस नीचे आया तो मेरा एग्जिट बना है इधर आके, ठीक है, इट्स अ डाउन, तो ये उसका साइडवेज है, ये आज का टॉप भी लग चुका है, ठीक है, ठीक है। बाकी बिगिनर को कैंडल से अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है, क्योंकि कैंडल ही आपको सबसे पहले बताता है कि कौन सा ट्रेंड बन रहा है। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, ये बुलिश रामी कैंडल है नीचे जो बनी है, तो ये एक बुलिश साइन है और इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो एक हमें ट्रेंड मिला। तो कैंडल आपको सबसे पहले बताएगा इंडिकेटर से पहले ट्रेंड क्या बन रहा है, तो कैंडल 6 भी एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। इसमें मैं एग्जिट कहाँ पे करता? इसमें मैं एग्जिट करूंगा यहाँ पर, इस कैंडल पे, हाँ, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग आई है। हाँ, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, ठीक है सर, समझ गया मैं, ठीक है। कौन सी कंडीशंस में ये जो सेटअप है काम नहीं करेगा?
ये हर जगह काम करेगा, ठीक है, क्रूड में भी करेगा, एनी मार्केट, ओके, ये स्विंग में भी काम करेगा, इंट्राडे में भी काम करेगा, ऑप्शन में भी काम करेगा, ठीक है। और मैं बेसिकली निफ्टी पे भी लगा सकता हूँ, बैंक निफ्टी एनी पे भी टाइप यूज़ कर ऑफ सकता ट्रेड। हूँ। आपको क्रूड करना है, आपको क्रिप्टो करना है, एवरी टाइम। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स यूज डिफरेंट EMIs, इट डिपेंड ऑन उनको किस पे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, व्हाट आई फॉलो वो मैंने यहाँ पर ब्रीफ किया बिगनर्स को। ठीक है। यूजुअली आपको कितने स्टॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट हो रही होगी? देखिए, हम सारे स्टॉक में इकट्ठे एंट्री तो ले नहीं सकते, वो तब पॉसिबल है जब हमारे पास सेक्टर पूरा आ गया, Right. क्या ये सेक्टर का भी है, समझ तो गया। अगर दिन के 2-3 स्टॉक मिल रहे हैं सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा तो हम वैसे ही ओवर ट्रेडिंग में चले जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और ठीक आप है, हैंडल कैसे करोगे? आपका एक ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, दूसरा गेंस जा रहा है, तो आपकी साइकोलॉजी वीक हो रही है, आपका डाइवर्ट हो रहा है माइंड। तो इसलिए अगर आप 1 by 1 भी करेंगे तो भी ठीक है। यूजुअली आप कितने ट्रेड्स लेते हो? अगर इस सेटअप में अगर आप ट्रेड कर रहे होगे तो कितने ट्रेड्स ले रहे होगे पैरेलली? मैं लाइव सेशन में तो 2-3 ट्रेड इकट्ठे लेता हूँ, ठीक है, 2-3 स्टॉक्स में 2-3 स्टॉक्स ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, वेरी विंडो इंटरेस्टिंग। लगा के, ताकि मेरे सामने रहे। ठीक है, इसमें एक मेरा डाउट था छोटा सा। आपने बोला कि जो स्टॉप लॉस है वो EMA 21 है, या हाउ डू वी पुट दैट इनटू ट्रेड? क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस तो हमें परसेंटेज वाइज या वैल्यू वाइज डालना है, तो आप ट्रेल करेंगे, पीछा करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये जो अगर आपकी प्राइस यहाँ पर चला गया है तो आप इसको स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसका क्या प्राइस है। तो क्या मुझे बार बार चेंज करना रहेगा? या अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पीछा करना पड़ेगा, ट्रेल करना पड़ेगा, तो यू हैव टू चेंज द ऑर्डर, मॉडिफाई करना पड़ेगा ऑर्डर को बार बार, हर 15-20 मिनट बाद? हर 15 मिनट बाद, या हर अगर आपको ट्रेड कमाना है तो आपको एक कैंडल के बाद भी करना पड़ेगा। अगर 20 पॉइंट कैंडल बन गई तो आपको फिर से अपना प्रॉफिट ऊपर बढ़ाना है, तो आपको फिर अपना स्टॉप लॉस 15 पॉइंट ऊपर बढ़ाना है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, ग्रेट। आई थिंक ये तो सब कुछ समझ आ गया सर, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इसके साथ क्या मैं कुछ और 1-2 इंडिकेटर्स भी यूज़ करता हूँ कन्फर्मेशन के लिए, या फिर आप यूज़ करते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं, VWAP इंडिकेटर है, वो इंटरडे में खाली काम आता है। ओके, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको फिर भी EMA का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर EMA लगा रहा हूँ तो ब्लैक लाइन EMA है, बट EMA क्या है, थोड़ा नीचे रहता है, तो जब तक VWAP है, ब्लैक लाइन, VWAP सॉरी, हाँ। तो VWAP बड़ा नीचे रहता है, तो जब तक VWAP तक के नीचे प्राइस जाएगा आपका हाफ ट्रेड तो खत्म हो गया। तो आप एंट्री VWAP इसका कर सकते हो, बट ट्रेलिंग के लिए आपको EMA 21 फॉलो करना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस स्ट्रैटेजी का, इस इंट्राडे स्ट्रैटेजी का लगभग क्या विन रेट रहता है और कितना हम रिस्क टू रिवॉर्ड मान के चलते हैं? देखिए, विनिंग ट्रेड तो आपका अगर मोमेंटम बदल रहा है तो ये आपको सबसे पहले हेल्प करेगा एग्जिट करने से, ठीक है। बट आप अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो 70-80% आपको मोमेंटम में रहता है। ओके, 70-80% विन रेशियो रहता है इसका। मुझे 10 में से 7-8 अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे जिसमें रहेगा। लाइक ऑल अवर बिगिनर स्टूडेंट जो इसको यूज़ कर रहे हैं, जो हमसे सीखने के बाद, दे आर अर्निंग मनी विद द हेल्प ऑफ दिस। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक किसी भी बिगिनर ट्रेडर के लिए दिस इज़ अ वेरी सिंपल, लॉजिकल, ईजी टू अंडरस्टैंड सेटअप, जो कि आज जितना भी हमने समझाया, 2 स्टॉक्स हमने देखे, उनको अब समझ आ गया होगा कि कल अगर सुबह उठ के उनको स्टेप बाय स्टेप भी लगा के देखना है ट्रेड, तो वो लगा सकते हैं और एटलीस्ट अपने लाइफ का फर्स्ट इंट्राडे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट, ग्रेट, दैट इज़ अमेजिंग सर। तो अब हमने स्ट्रैटेजी पूरी समझ ली अच्छे से, रूल्स हमें समझ आ गए। पहले स्टॉक पिक करना है, स्टॉक पिक करने के बाद देयर आर कपल ऑफ कन्फर्मेशंस दैट वील हैव टू गेट। इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, RSI यूज़ करेंगे, उससे हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा। एग्जिट क्राइटेरिया हमें सेट पता लग गया है, कैसे करना है, शॉर्ट सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, पता चल गया है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी सीखने के बाद, सिस्टम सीखने के बाद भी बहुत सारे लोग गलतियाँ करेंगे, लॉस करेंगे। क्यों करेंगे? दो सिस्टम और स्ट्रैटेजी हो सकता है 70-80% विन रेट हो, बट लोग फिर भी लॉस में जाएंगे क्योंकि उनका माइंडसेट उनके रास्ते में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि 80% तो माइंडसेट ही है। करेक्ट। 20% आपका माइंडसेट का जो वर्क करता है, माइंडसेट आपका काम करता है 80%। यस, यस। 20% में आपका स्ट्रैटेजी आता है, तो सबसे पहले आपको माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। इसी में मेरे माइंडसेट के अराउंड ही कुछ क्वेश्चंस होंगे कि कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे एक विनिंग माइंडसेट बनाएं। पहला तो कुछ गलतियां डिस्कस करते हैं, जो लोग गलतियां यूजुअली करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते वक्त। पहला तो हमने ये सीख लिया कि स्टॉक कौन सा पिक करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। पूरा ट्रेंड देखेंगे, सेक्टर का ट्रेंड देखेंगे, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्रेंड के कहने पे, किसी टिप के कहने पे उनको पता चल जाएगा कि नहीं यार, ये रूल छोड़ देते हैं, आज तो रिलायंस में करते हैं ट्रेड क्योंकि टेलीग्राम वाला बंदा ये कह रहा है,
आज तो टाइटन में करते हैं, आज बजाज फाइनेंस में करते हैं, तो क्या हम इस सिस्टम को कहीं और डिप्लॉय करें तो क्या वहाँ पे भी चल जाएगा ये, या फिर रूल के साथ स्टिक रहना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, अगर कोई आपको टेलीग्राम में कह रहा है रिलायंस बाय करना है और यहाँ पर चार्ट और सिस्टम कह रहा है कि बाय नहीं करना, सेल करना है, ठीक है, तो आपको चार्ट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो चाहे आपका नेबर बोले, चाहे लेटी बोले, ऊपर से भगवान भी आके बोले बेटा ले ले, तब भी नहीं लेना जब तक चार्ट ना बोले। तो हमें चार्ट की सुननी है। ठीक है, ठीक है, चार्ट क्या बोल रहा है? ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक स्टॉक पिकअप कर लिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और मैंने उसके अंदर एंट्री भी ले ली। अब एंट्री लेने के बाद जब मेरे पैसे डिप्लॉय हो जाते हैं, मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के इमोशंस चल रहे होते हैं, और वही इमोशंस मुझे ड्राइव करते हैं गलत एक्शन लेने के लिए भी। ठीक है, एक इमोशन चल रहा होता है ग्रीड का, और वो ग्रीड का इमोशन कहाँ आता है? मैंने इन्वेस्ट किया या ट्रेड किया HUL के अंदर, मैंने बाय पोजीशन बनाई, बट मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूँ HUL से भी ज़्यादा तेज़ भाग रहा है बजाज फाइनेंस। हाँ जी। ठीक है, उस केस में क्या करते हो आप? क्या करते हो? लाइक व्हाट इज़ योर कॉल ऑन दिस? देखिए, वो तेज भाग रहा है, इसका उसमें न्यूज़ है। हाँ, बट अगर वो भाग चुका है, हाँ, तो विनिंग जो ऑलरेडी निकल गया है उसको पीछे नहीं भागना। कुछ कर नहीं सकते। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। काश में ले लेता। तो उस फियर के कम में सबसे ज़्यादा बिगनर पैसा लूज करता है। हमेशा एंट्री क्रॉस ओवर पे हो, हम क्रॉस होने के बाद जो टॉप पे एग्जॉस्शन पे एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि हम पीछे भागते ट्रेड को लेते हैं। सबसे पहले बिगिनर को अपनी कंडीशन में ट्रेड लेना है। जब तक उसके सेटअप पे, जैसे हम बात करेंगे, सबसे बड़ी यह है कि अगर किसी ट्रेडर को देखना है तो आप देखो कि एक टाइगर कैसे शिकार करता है। वो सबसे पहले अपने शिकार को अपने कंफर्ट जोन में आने देता है। करेक्ट। कभी भी पीछे नहीं भागता, पहले अपने कंफर्ट जोन में आने देता है। तो आपको ट्रेड के पीछे नहीं भागना, ट्रेड को आपकी कंडीशन में आने देना है। अगर ऊपर भाग गया तो छोड़ दो। इतने सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, आप वो देखो जो अब चलना शुरू होएगा। जो निकल गया है वो एग्जॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और आप एग्जॉस्शन में हमेशा ट्रेडर टॉप पे आके बाय करके बैठ जाता है बिगिनर। ठीक है, ठीक है, समझ गया। ग्रीड का एक और एस्पेक्ट दिखता है जब हमें मार्केट ने एग्जिट कंडीशन दे दी है, बट हमने एग्जीक्यूट नहीं की एग्जिट। वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि और ऊपर जाएगा या फिर और नीचे जाएगा। हाउ डू यू कंट्रोल दैट? देखिए, मार्केट यहाँ पर क्या लगता है उससे पैसा नहीं बनता। जो दिख रहा है वो देखना है, क्योंकि पैसा लगने का नहीं बनता, पैसा बनता है दिखने का। अगर मार्केट दिखा रही है कि एग्जिट कर जाओ, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो दिखने में बनता है। ठीक है। अगर आपको दिख रहा है मार्केट एग्जिट मांग रही है तो एग्जिट करना पड़ेगा। लगने का है कोई पैसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, मैं ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, मैंने ग्रीड और फेयर का भी ध्यान रख लिया, और मैंने आपको बताया कि 10,000 के साथ मैं कल से ट्रेड करना, इंट्राडे ट्रेडिंग मेरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, बट मेरा ओवरऑल कैपिटल लेट्स से 1 लाख रुपीज़ का है, 10 लाख रुपीज़ का है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसके साथ मैं पोटेंशियली जाना चाहूँगा मार्केट के अंदर। आफ्टर हाउ मनी डेज, या फिर कितने दिनों में प्रैक्टिस, कितने दिन या कितने हफ्ते में प्रैक्टिस करूँ पहले, और उसके बाद मैं 10,000 को 20,000 लेके जाऊँ, 20,000 को 1 लाख लेके जाऊँ? आपने अपना कैपिटल डिप्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया था? देखिए, सबसे पहले तो आपको कम कैपिटल से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन क्या चाहिए एक बिगिनर को? कंसिस्टेंसी। ठीक है, ठीक है। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए, कंसिस्टेंसी आ रही है, तो आपका प्रॉफिट आपको कॉन्फिडेंस देता है कैपिटल बढ़ाने के लिए। और अगर आपको कैपिटल डिप्लॉय करनी है तो डाइवर्सिफाई कर दो। सारा क्या करते हैं अभी क्या कि कोई न्यूज़ है, एक सेक्टर पे सारा पैसा लगा दिया, अगर पूरा सेक्टर बैठ गया तो सारी कैपिटल बैठ गई आपकी। तो आपको अपनी कैपिटल को 5 सेक्टर पकड़ लीजिए, 5 सेक्टर, उसमें 20,000 डाइवर्सिफाई कर दीजिए। इवन वाइल्ड ट्रेडिंग? वाइल्ड ट्रेडिंग। अगर एक सेक्टर नहीं चल रहा, बाकी 4 तो चल रहे हैं। अगर 2 नहीं चल रहे, बाकी 3 तो चल रहे हैं, तो जो 2 का सेक्टर का बैठे हुए हैं वो 3 आपको प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। तो हमें अपनी बिगिनर एज अ बिगिनर अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर देना है, नॉट कि एक ही सेक्टर में सारे पैसे लगाएं। जैसे अभी अगर आपका एक्स अमाउंट कैपिटल डिप्लॉयड है मार्केट के अंदर, आप अपना कॉम्पोजिशन बता सकते हैं कि आप कैसे डिप्लॉय करते हैं? मैं सबसे पहले कौन सा सेक्टर जो ओवरसोल्ड होकर निकलना शुरू होएगा। ठीक है, क्योंकि जो निफ्टी टॉप पे खड़ी है, बट हर सेक्टर नहीं परफॉर्म करता है, रोटेशन चलती है, साइकिल चलती है। करेक्ट। हर एक जो आज नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर नीचे आएगा। तो जो नीचे है अगर वो ऊपर जाने तैयार हो रहा है, मैं वहाँ थोड़ा एंट्री करूंगा, क्योंकि तो निफ्टी एक रीसेंट एग्जांपल दे दीजिए, कहाँ पे आपने अमाउंट डिप्लॉय किया? अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक करें तो यहाँ पर हमने शुगर पे किया है, और क्या कहते हैं एस्ट्रल लिमिटेड। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ, जहाँ पर करेक्शन अच्छी खासी हो चुकी है, ओके, तो लूजिंग पॉइंट कम है, क्योंकि नीचे हमारी एंट्री नीचे से हो रही है। जब आपकी एंट्री रिवर्सल सपोर्ट से होती है तो आपको पता होता है कि मेरा कितना स्टॉप लॉस लगना है, मुझे कहाँ एग्जिट करना है। टॉप पे पता नहीं होता एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे दीजिए कि अगर 1 लाख है तो मैं कितने स्टॉक्स में डिवाइड करूं ट्रेड करते हुए, कितने ट्रेड्स लूं पैरेलली? अगर आप स्विंग की बात कर रहे हैं, इंट्राडे की बात करें, 1 लाख है तो पहले तो सारे 1 लाख को मत लगाइए।
ठीक है, क्योंकि कुछ पैसा आपको स्विंग के लिए रखना है। तो अगर मान लीजिए आपके 1 लाख रुपए तो आप 40,000 रखें स्विंग के लिए, ठीक है, और 60,000 से ट्रेडिंग करें। 60,000 मैंने डू इंट्राडे ट्रेडिंग, क्या मैं सुबह उठते 9:30 बजे जैसे ही मुझे पहला स्टॉक मिला मैं 60,000 लगा दूं वहाँ पे? नहीं, हाँ, आपको पहले लगाने थोड़े, ठीक है, 20,000, ठीक है, एक स्टॉक के अंदर, एक स्टॉक के अंदर। ओके, जब तक उस पर कंफर्मेशन है मत कैपिटल बढ़ाइए। ठीक है, क्या होता वो स्लो हो, आपने पूरे 60 लगा दी तो आपकी आज सारी कैपिटल ब्लॉक होगी। आप और स्टॉक देखिए उसी सेक्टर में जो और परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है, बाकी का पैसा उसमें लगा दीजिए। ओके, क्योंकि अगर एक स्टॉक नहीं चल रहा तो आपके 60,000 आके डिप्लॉय हो गए, आप एग्जिट करोगे। बट जो आप डाइवर्सिफाई कर दोगे उसी 60,000 को किसी और स्टॉक में जो अच्छा परफॉर्म दे रहा है, तो उसमें आपका पैसा फिनिंग बनेगा। आप पहले उसे बुक करोगे और इसको बाद में देखोगे। तो अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग कैपिटल को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहले एक पार्ट डिप्लॉय करो किसी एक स्टॉक में, ताकि अगर कोई और 2 स्टॉक्स भी मिलते हैं तो वहाँ पे डिप्लॉय हो सकता है। अगर नहीं मिलते हैं तो इसी में अगर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाए तो पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दो, और शाम तक वैसे भी वो आपका फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाता है आपको। वैसे भी बेस्ट टाइम रहता है 9:30 टू 10:30 11 तक। तो इंटरडे के सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो 10:30 11 तक अपना काम दिखा देते हैं, ठीक है, उसके बाद साइडवेज हो जाते हैं। तो अगर वो नीचे आ रहे तो आप अपना बुक करके प्रॉफिट आराम से बैठिए और दूसरे ट्रेड की वेट कीजिए, वहाँ पर क्या आपको ट्रेंड मिल रहा है। तो आपका पैसा रोटेट होएगा, ब्लॉक नहीं होएगा, जो स्विंग में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने एक चीज़ मेंशन की 60,000 में इंट्राडे करेंगे, 40,000 में स्विंग करेंगे, ठीक है। तो इससे मेरे 2 क्वेश्चंस निकलते हैं। पहले तो इंट्राडे में मान लीजिए मैंने आज 60,000 से लेट्स से मैंने एक हफ्ता इंट्राडे करता गया, मेरे पास 6,000 का प्रॉफिट बन गया। अब इस जो 6,000 के कैपिटल को क्या मैं इंट्राडे कैपिटल को ही बढ़ा लूँ, या फिर वो 6,000 प्रॉफिट में स्विंग में डिप्लॉय कर दूँ? नहीं, पहले तो आप उस प्रॉफिट को घर लेके जाइए, ठीक है, क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की ये डेफिनेशन होती है जो प्रॉफिट को विड्रॉ करता है। सबसे पहले एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही माना जाता है जो आज का प्रॉफिट विड्रॉ करे, और आज के प्रॉफिट अगर विड्रॉ नहीं कर रहा तो कल उसका 50% का रिस्क ले। तो सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको प्रॉफिट विड्रॉ करना भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एंड नहीं है। आप कैपिटल कितनी लगाएंगे तो सबसे पहले विड्रॉ भी कीजिए। तो लाइक व्हाट इज द रूल दैट यू फॉलो? 50% आप विड्रॉ कर लेते हैं, या 50% लगा रहता है, बाकी लगा रहता है। और क्या वो इंट्राडे में ही लगा रहता है या फिर आप मूव कर देते हैं? वो मेरे फंड्स में ऐड रहता है। अच्छा, ठीक है, तो उसको मैं जहाँ मर्जी यूज़ करूँ, नेक्स्ट डे इंट्राडे में करूँ, स्विंग में करूँ। अब मैं 60% इंट्राडे 40% स्विंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए स्विंग में आपने अभी लिया बट वो अभी चल नहीं रहा, तो वहाँ पर इसलिए मैं छोटी कैपिटल कह रहा हूँ आपकी ब्लॉक। और इंट्राडे में लेवरेज मिलती है, तो मैं 60,000 में रिलायंस के 100 स्टॉक्स फॉर एग्जाम्पल ले सकता हूँ, और अगर रिलायंस 20 पॉइंट नीचे गए तो आई कैन मेक 2,000 रुपीज़। करेक्ट, फेयर एनफ, अंडरस्टूड। दूसरा क्वेश्चन मेरा इसमें ये था, क्या कोई तरीका होता है कि मैं इंट्राडे ट्रेड को स्विंग में कन्वर्ट कर दूं, और वो कब करना चाहिए? अगर आपको सेम सेटअप EMA वाला डेली के चार्ट पे क्रॉस ओवर दे रहा है और RSI 50 से ऊपर है, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आज आप इसे BTST लेके जा सकते हैं और इसे पोजीशन भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि कल अगर आज बुलिश है और वॉल्यूम अच्छा उठा हुआ है तो आप NSE की साइड पे आके वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। 50% से ऊपर का वॉल्यूम उठ गया है 315 पे, इसका मतलब 50% से ज़्यादा ट्रेडर से घर लेके जा रहे हैं, खाली मैं लेके नहीं जा रहा। तो आप NSE की साइड पे आके वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं कि इस स्टॉक पे प्रॉफिट बन रहा है। कई बार क्या होता है कि एक स्टॉक आज परफॉर्म किया बट डिलीवरी से 30% उठी है, इसका मतलब कि पीपल यूज टू ट्रेड इंट्राडे, आज का गेन कमाया और छोड़ दिया। बट अगर उसकी डिलीवरी 55% 60% से ऊपर उठी है, इसका मतलब कि 60% ट्रेडर लेके जा रहे हैं वॉल्यूम घर, तो वो नेक्स्ट डे भी ऊपर परफॉर्म करेगा। कई बार हमने देखा कि रिलायंस निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया, रिलायंस नीचे गिर गया, निफ्टी वाज डाउन, रिलायंस वाज डाउन, बट शाम को उसकी डिलीवरी 62% उठी है, तो नेक्स्ट डे रिलायंस ने परफॉर्म किया। तो वहाँ पर एक बायर ने एंड पे जाके बॉटम पे सपोर्ट पे बायर कर लिया डिलीवरी परसेंटेज देखते। ठीक है। एक और चीज़ से लोग डरते हैं, ट्रेडर्स डरते हैं ड्यूरिंग द डे ऑल्सो व्हेन द ट्रेड इज़ लाइव। वो होता है कि कोई न्यूज़ आ गई मार्केट में, या फिर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऊपर नीचे जा रहा है। शुड आई स्टिल हैव लाइक कंप्लीट फेथ इन द सेटअप, और जब वो एग्जिट दे तभी मेरे को एग्जिट करना है, या फिर कुछ और अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है तो वो तो मार्केट का टेक्सचर है, वो बिहेवियर है। जब तक आपके सेटअप के नीचे नहीं आ रहा है, EMA के नीचे नहीं आ, तब तक आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ तक इंडिकेशन ही नहीं मिल रहा, वो अभी भी बुलिश ही है। तो वो मार्केट का टेक्सचर है, वो बीच में रेड कैंडल बनाएगा, ग्रीन रेड बनाएगा, हमें उस नॉइस को रिड्यूस करना है, सेटअप पे देखना है। वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रेट सर। आई थिंक स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए जो विनिंग माइंडसेट चाहिए, दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं। आई थिंक हार्डली ऐसे लोग होंगे यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे
जो अपनी पूरा एंड टू एंड सेटअप समझाएंगे भी और कॉन्फिडेंस भी देंगे कि ये चलेगा और लोग उसको फॉलो करके पैसे भी बना पाएंगे. सो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ दोज सेशंस जहाँ पे लोग ना कि सिर्फ सीखें बट प्रैक्टिकल इनसाइट सीखें जो कि कल लोग यूज़ कर सकते हैं मार्केट में जाके, डिप्लॉय कर सकते हैं और उससे पैसा भी बना सकते हैं. बिल्कुल. सो आई थिंक दैट इज़ ग्रेट. On a closing note, if you would want to maybe give 2 to 3 advice points or some guidance to someone who's just starting to trade, छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट कर रहा है, 10,000 के साथ, 20,000 के साथ, और एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट में जाएगा, पैसा बनाएगा और इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा, तो उसके लिए क्या 2-3 छोटी एडवाइस हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो एडवाइस ये है कि आपको मेहनत करनी है. लर्निंग हर जगह इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे फैमिली बिजनेस भी रन करना है तो मुझे लर्निंग वहाँ भी चाहिए. राइट. मैं कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे इंटर्नशिप चाहिए. तो लर्निंग तो हर जगह चाहिए, तो यहाँ पर भी लर्निंग चाहिए. देखिए, ईजी पैसा, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पर ईजी पैसा हार्डवेयर से बनता है, मुश्किल तरीके से. तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट मेहनत आप टिप के भरोसे रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे. अगर आप लर्निंग पे मेहनत करेंगे, उसके लिए आप हमें आगे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप उसको मेहनत को करके अपने ऊपर पहले लर्न कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए और फिर परफॉर्म कीजिए. करेक्ट. Great, sir. Thank you so much for coming on the show. It was a pleasure meeting you and discussing with you and learning this amazing strategy. Thank you so much, sir. Thanks. Nice to be here.